500 बज गए हैं। सर लाइव कर दिया है, मैंने विपुल सर को होस्ट बना दिया है। ठीक है, थैंक यू मैडम। ओके ठीक है, मैं मीटिंग लीव कर रही हूँ। ठीक है। अनम्यूट करो आप। अभी भी आ गई दोबारा? क्या आ रही है? बर्तनों की आवाज कुछ। हाँ, ये यार संभालो ना अंदर जाके भाई, क्या कर रहे हो? भाभी जी बुला रही होंगी। ये पीछे ये तो नहीं है कि ये जो अमरीश करके जहां पर हैं वहां पर वो करते हैं, मैनेज कर रहे हैं? नहीं नहीं, चलो ओके। तो म्यूट करना पड़ेगा आपको थोड़ा, ऐसे कभी कर सकते हैं। नहीं, बैक साइड से आवाजें हैं। अशोक जी परमिशन है, शुरू करें? हाँ करो सर, हैं? कर दो। नव्या जी परमिशन है? ओके सर मैं तो सर बिल्कुल एट योर डिस्पोजल है सर, प्लीज। ठीक है, थैंक यू। नमस्कार सभी को, नमस्कार, प्रणाम, जय जिनेन्द्र, आदाब, सत श्री अकाल। Good afternoon to all respected members and my dear friends. It is a pleasure moment for me to welcome you all and our guest speakers, C. Ashok Kumar Jain and C. Navya Malhotra on the 8th VCM of Rohini CP Study Circle. I am before you with my Rohini Study Circle team, C. Ravi Shankar Arora, Deputy Convener of this study circle, Vipul Mata, Coordinator of this study circle. Today's virtual CPE meeting is being organized on a very important and relevant topic, and that is the latest development in GST, including e-invoicing. Nowadays, GST is more about updates and changes. It is not static, it is dynamic now. Before moving further, let me announce one or two important things. That don't write membership number, etc., mobile number on this screen, and CP hours will be given only to those members who will watch VCM till end. Moving further, today's VCM technical session. First technical session will be taken up by C. Ashok Kumar Jain on the latest development.
अब आज देखिए 2 लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रहे हैं। एक लेटेस्ट डेवलपमेंट अशोक जी लेंगे जो कि इन जनरल होगा, एज ए होल होगा, और एक लेटेस्ट डेवलपमेंट जो स्पेसिफिक जीएसटी के ऊपर है और ई इनवॉइसिंग के ऊपर है वो नव्या जी लेंगे। लास्ट वीसीएम्स जो कि हमारी 9 अक्टूबर को हुई थी, 9 अक्टूबर से इस वीसीएम तक जो भी अमेंडमेंट्स नोटिफिकेशंस हुई हैं, चाहे वो इनकम टैक्स में हो, जीएसटी में हो, कंपनीज एक्ट में हो, आईसीआई में हो, आरबीआई हो, या कोई भी और इंफॉर्मेशन जो रेलेवेंट हो हमारे प्रोफेशनल्स के लिए और यूजफुल हो हमारी प्रैक्टिस में, वो अशोक जी अपने डेलिब्रेशन में कवर करेंगे। ये हर बार मैं रिपीट भी करता हूँ और ये हमारी स्टडी सर्कल का एक यूनिक फीचर है, क्योंकि हर सेमिनार में कोई ना कोई नए मेंबर हमारे साथ जुड़ते हैं, इसलिए उनके लिए ये रिपीटिशन जरूरी है। And second technical session will be taken up by CA Navya Malhotra ji, which I have already told you, it is on the latest development in GST, including e-invoicing. Without taking further time, I request Ashok Kumar Jain ji to start his first technical session, which is on latest development as a whole. Over to Ashok ji. मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ पहले। Please. आ गई सर? आ गई सर, आ गई। Good evening to all. CA Ajay Jain ji, convener of the study circle. CA Ravi Shankar Arora ji, deputy convener of the study circle. CA Vipul Mata ji, coordinator of the study circle. CA Navya Malhotra ji, co-speakers of the today's program. And my dear fellow colleagues, I have compiled the notifications and circular issued between our previous webinar to this webinar. First, I will take income tax part. Clarification on payment under VSV Act 2020. The CBD, in order to mitigate undue hardship and remove difficulty that may be caused by a forced requirement of payment within 15 days from the date of receipt of certificate from the designated authority in exercise of power conferred under section 10 and 11 of Vivad Se Vishwas scheme, it is hereby clarified that where a declarant files a declaration under VSV on or before 31st December 2020, the designated authority, while issuing the certificate under subsection 5 of VSV, shall allow the declarant to make the payment without additional amount on or before 31st March 2021. जो आपको भी पता है, जैसे मैं नेक्स्ट उसमें भी नोटिफिकेशन में भी लूंगा कि इसकी जो डेट्स है इन्होंने VSV स्कीम की आगे बढ़ा दी। अब आपको डिक्लेरेशन जो है वो 31 दिसंबर 2020 तक तो डिक्लेरेशन फाइल करनी है, और जो उसकी पेमेंट है विदाउट एनी एडिशनल इंटरेस्ट वो 31 मार्च 2021 है उसकी डेट। क्योंकि जैसा कि स्कीम के अंदर ये था, जब भी आप डिक्लेरेशन फाइल कर देंगे तो उसके जब भी सर्टिफिकेट डिक्लेरेशन असेसी फाइल करेगा उसके बाद अथॉरिटी उसको एक सर्टिफिकेट इशू करेगी, लेकिन जब सर्टिफिकेट इशू कर देगी उसके विद इन 15 डेज आपको उसकी पेमेंट करनी होती है। लेकिन जैसा कि अब इन्होंने कर दिया कि भाई 31 दिसंबर 2020 तक डिक्लेरेशन फाइल करनी है और उसकी पेमेंट आप 31 मार्च 2021 तक कर सकते हैं। तो अब जो भी अथॉरिटी इशू करेगी सर्टिफिकेट तो वो उसमें 15 दिन का लिखेगी, साथ में ये लिखेगी कि आप 31 मार्च 2021 तक आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि जैसे आपने 31 दिसंबर को इशू कर दिया और मान लो उन्होंने 15 जनवरी को आपको सर्टिफिकेट दे दिया तो आपकी ड्यू डेट 38 जनवरी बन जाती। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने विदाउट पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस 31 मार्च 2021 तक किया हुआ है, तो उसका इन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दिया कि भाई जो भी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है वो जब भी सर्टिफिकेट इशू करेगी उसके अंदर लिख के देगी कि आप ये पेमेंट 31 मार्च 2021 तक कर सकते हैं। इसी तरह जैसे मैंने पहले बताया कि एक्सटेंशन कर दिया इन्होंने, क्योंकि पहले जो डिक्लेरेशन फाइल की और पेमेंट की डेट दोनों 31 दिसंबर 2020 थी। अब इन्होंने 2 डेट्स कर दी इसमें। डिक्लेरेशन फाइल आपको 31 दिसंबर 2020 तक करनी है और उसकी जो पेमेंट है विदाउट एडिशनल फीस 31 मार्च 2021 तक करनी है। Condonation of delay in filing Form 10BB. The CBDT has circular and with a view to expedite the disposal of application filed by the such entity for condoning the delay of Form 10BB for the year 1819. The Commissioner of the Income Tax are authorized to admit such application for condonation of delay. The Commissioner will, while entertaining such application regarding filing Form 10BB, shall satisfy themselves that the applicant
was prevented by reasonable cause for filing such application within stipulated time. 18-19 का तो इन्होंने दे दिया कि भाई आप जब भी आप कर सकते हो, और उससे आगे का अगर जो भी 365 दिन के अंदर अगर फॉर्म 10BB लेट फाइल हुआ है, ये 10BB जो फॉर्म है वो फाइल होता है आपका सेक्शन 10 सब सेक्शन 23 की जो भी एंटिटीज डिडक्शंस क्लेम करती है, एग्जाम्पशन क्लेम करती है, उसमें ऑडिट रिपोर्ट फाइल करनी पड़ती है कि जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस है, हॉस्पिटल्स हैं, तो उनको एक रिपोर्ट फाइल करनी पड़ती है 10BB। तो ये ऑनलाइन की थी, तो उसके बाद प्रॉब्लम्स आ रही थी फाइलिंग करने के अंदर, तो उसके लिए पहले भी एक बार ये इन्होंने कंडोनेशन ऑफ डिले की स्कीम लाए थे, तो अब ये फिर दोबारा से इसको कंडोनेशन के लिए ये दिया है कि आप 18-19 तक का भी कंडोनेशन करा सकते हैं, उसके बाद जो भी 365 दिन तक अगर कोई डिले है तो उसका भी आप कंडोनेशन करा सकते हैं। आर्म लेंथ प्राइस अंडर सेक्शन 92C. The CBDT has issued notification and hereby notify that where the variation between the arm length price determined under section 92C of the Act, the price at which the international transaction or specified domestic transaction has actually been undertaken does not exceed 1% of later in respect of wholesale trading and 3% of later in all other cases. The price at which the international transaction or specified domestic transaction has actually been undertaken shall be deemed to be the arm length price for the assessment year 2021. इसमें ये CBDT हर साल एक जो कि टॉलरेंस लिमिट है, जो कि आपका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के अंदर इन्होंने एक टॉलरेंस लिमिट दी हुई है कि अगर आपका मान लो कि जो एक्चुअल ट्रांजैक्शन है और जो आर्म लेंथ प्राइस के अंदर अगर होलसेल ट्रेडिंग है उसमें अगर 1% का डिफरेंस आता है और जो अदर कोई भी आइटम्स है उसमें 3% का डिफरेंस आता है, तो एक टॉलरेंस लिमिट होगी कि उसमें आप जो आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू है वही ले सकते हैं। तो इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए ये स्पेसिफाई किया है 1% और 3%। 19-20 के लिए भी सेम ही था, ये 1% और 3% ही था। Amendment in income tax rule. The CBDT has issued notification and amended the rule 67 that shall be effective from 21-22. Amendment in equalization levy rules. The CBDT has issued notification and amended the equalization levy rules 2016. Amendment has been made in rule 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 and form number 1 and form number 3 substituted. बेसिकली इन्होंने जो भी पूरा इक्वलाइजेशन लेवी रूल्स 216 था वो पूरा अमेंडमेंट कर दिया इसके अंदर, क्योंकि जैसा आपको पता है कि पहले जो इक्वलाइजेशन लेवी थी वो हमारी 6% लगती थी। सर्टेन जो भी कोई हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड या एडवर्टाइजिंग कोई मटेरियल डाउनलोड करते थे उस पर 6% की लेवी लगती थी इक्वलाइजेशन लेवी। लेकिन इस फाइनेंस एक्ट 2020 में इन्होंने अमेंडमेंट किया इसके अंदर, उसके अंदर इन्होंने किया कि जो भी नॉन रेजिडेंट अगर कोई ई कॉमर्स पोर्टल या डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑपरेट करता है और वो कोई भी इंडिया के अंदर जो एक सेल ऑफ गुड्स करता है चाहे सेल ऑफ सर्विसेज करता है तो उसको 2% इक्वलाइजेशन लेवी पे करनी है। तो इसके लिए इन्होंने सारे रूल्स में अमेंडमेंट किया है, सारे फॉर्म्स में अमेंडमेंट किया है, ताकि जो 2% का जो इफेक्ट है, जो भी जिन्होंने भी रिटर्न्स भरनी है वो 2% वाले भी रिटर्न भर सके। ई कॉमर्स ऑपरेटर्स जो भी नॉन रेजिडेंट प्लेटफॉर्म ऑपरेट करते हैं उसके अंदर, उसके लिए इक्वलाइजेशन लेवी के लिए इन्होंने पूरे रूल्स को अमेंडमेंट किया है। एक्सटेंशन ऑफ ITR एंड टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। जैसा कि आपको पता है कि इनके हमारी जो डेट्स थी 31 अक्टूबर 2020 और 30 नवंबर 2020, उसमें डेट्स में इन्होंने चेंजेस किए हैं। तो फर्स्ट जो इन्होंने किया था, ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग इनकम टैक्स रिटर्न फॉर टैक्स पेयर इंक्लूडिंग देयर पार्टनर्स हु आर रिक्वायर्ड टू गेट देयर अकाउंट ऑडिटेड, जिनकी ड्यू डेट 31 अक्टूबर थी, दैट हैज बीन एक्सटेंडेड अप टू 31 जनवरी 2021। तो वो अब जो भी उनकी रिटर्न फाइल है, जो टैक्स ऑडिट केसेस हैं, उनकी रिटर्न आप 31 जनवरी 2020 तक फाइल कर सकते हैं असेसमेंट ईयर 2021 के लिए। इसी तरह से जो ड्यू डेट फर्निशिंग की थी हमारी जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और इंटरनेशनल स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस के लिए जो भी हमारा रिटर्न्स हमें अपलोड करनी थी वो 30 नवंबर तक ही, वो भी एक्सटेंड कर दी इन्होंने 31 जनवरी तक। इसी तरह से जो ड्यू डेट हमारी जो नॉर्मल टैक्स पेयर्स की थी वो 31 दिसंबर 2020 तक इन्होंने एक्सटेंड की है। इसमें मेरे ख्याल से एक गलत हो गया है इसके अंदर, क्योंकि जो रिटर्न है वो तो 31 जनवरी तक है और जो हमें रिपोर्ट फाइल करनी है वो 31 दिसंबर तक फाइल करनी है उसकी। तो ये एक आप अमेंडमेंट ये नोट कर लेना। और जो अदर देन टैक्स ऑडिट टैक्स पेयर्स है उनकी 31 दिसंबर 2020 है। एक्सटेंशन ऑफ ITR एंड टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का वो आपको मैंने बताई दिया। इसी तरह जो सेल्फ असेसमेंट का इन्होंने जो 1 लाख से नीचे सेल्फ असेसमेंट था उसकी भी ड्यू डेट इन्होंने अब एक्सटेंड कर दी। जो नॉर्मल केसेस है उनमें 31 दिसंबर है और जो बाकी जो 31 जनवरी जिनकी है उनका 31 जनवरी तक, जिनका भी 1 लाख से नीचे आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स है उसकी ड्यू डेट वो मानी जाएगी।
जीएसटी में आज कुछ पार्ट तो नव्या जी कवर करेंगे, जितना वो कवर करेंगे वो मैं नहीं करूंगा, उसमें इसमें दिया हुआ है मैंने अमेंडमेंट सारे, लेकिन वो कवर मैं नहीं करूंगा। डेट्स ऑफ जीएसटी फॉर्म्स, कुछ जैसे इनको हर क्वार्टरली या मंथली जो इनको फॉर्म्स स्पेसिफाई करने पड़ते हैं, तो उससे रिलेटेड इन्होंने कुछ नोटिफिकेशन इशू किए थे, जिसमें GSTR 1 जैसे अक्टूबर 20 से लेके दिसंबर 20 तक जो क्वार्टरली था हमारा, जैसा कि क्वार्टरली का पहले आपको पता है कि डेट हमारी 31 जैसे दिसंबर का था तो 31 जनवरी थी, लेकिन उसको अब इन्होंने 13 जनवरी 2021 कर दिया। इसी तरह से जो GSTR 1 जनवरी 21 से मार्च 21 तक का है, उसकी 13 अप्रैल 2021 है, तो ये कि इन्होंने GSTR 1 के लिए अमेंडमेंट किया है। इसी तरह जो GSTR 1 मंथली जो अक्टूबर 20 से लेके मार्च 21 तक, वो भी इन्होंने स्पेसिफाई कर दी 11th ऑफ सक्सीडिंग मंथ। इसी तरह GSTR 3B जो है वो अक्टूबर 20 से लेके मार्च 21 तक की जो मोर देन 5 करोड़ थे उनका 20th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। और जो अदर केसेस है जो स्पेसिफाइड स्टेट्स हैं लेस देन 5 करोड़, उसमें एक की हो गई 22nd सक्सीडिंग मंथ और 24 सक्सीडिंग मंथ। इसमें जब नव्या जी आपको जो नई रिटर्न्स का जो बताएंगे तो उसमें इन डेट्स में भी कुछ चेंजेस हुए हैं, वो आपको वो बताएंगे। इसी तरह फॉर्म 9 जो था पहले, जो लेस देन 2 करोड़ ऑप्शनल था, वो सिर्फ 17, 18 और 18, 19 इन्होंने स्पेसिफाई किया था, 19, 20 और स्पेसिफाई कर दिया। इसी तरह जो HSN कोड इन्होंने आगे रिक्वायरमेंट कर दी कि जिनकी भी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है उनको 4 डिजिट का HSN कोड डालना है, और जिनकी मोर देन 5 करोड़ है उसको 6 डिजिट का HSN कोड डालना है। Extension of date of form GSTR 9 and 9C. The CBIC has issued notification and extended the filing of form 9 and 9C from 31st October to 31st December 2020. तो जो 18-19 की जो लास्ट डेट है फाइलिंग करने की 9 और 9C की, वो 31st दिसंबर 2020 है। Extension of date of form ITC 04. The CBIC has issued notification and extended the filing of ITC 04 for the period from July 20 to September 20 till 30th November 2020. तो ये डेट भी इन्होंने एक्सटेंड कर दिया, 30 नवंबर तक सितंबर 20 का ITC 4 फाइल कर सकते हैं। इसी तरह इन्होंने एक सर्कुलर इशू किया है जिसमें क्लैरिफिकेशन दिया है इनपुट टैक्स क्रेडिट। जैसा कि आपको पता है कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट फरवरी 20 से लेके अगस्त 20 तक का था, वो हमें सारा जो 110% का देखना था, वो सितंबर की जो हमने रिटर्न फाइल की उसके अंदर देखना था। उसी का इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है कि आपको क्यूमुलेटिव देखना है, वो फरवरी से लेके अगस्त तक का जो भी क्यूमुलेटिव होगा आपका सितंबर में, उसका 110% आपको देख के लेना है उसका। और उसके अंदर जो भी आपका एक्सेस अगर कोई ITC आता है तो आपको जो टेबल 4B2 है फॉर्म 3B का फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, उसके अंदर आपको उसको रिवर्सल करना है। और जो भी अगर आप रिवर्सल नहीं करोगे तो उस पीरियड का, तो आपको उस पर टैक्स लगेगा। तो आपको क्यूमुलेटिव देखना है, मंथ वाइज नहीं देखना, उसको क्यूमुलेटिव देखना है, उसका क्लैरिफिकेशन दिया था इन्होंने। एक ये कुछ GST के अंदर इन्होंने रूल्स में अमेंडमेंट किए थे, जैसे रूल 67A में इन्होंने मैनर ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न फॉर आउटवर्ड सप्लाई शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज की फैसिलिटीज दी इन्होंने GSTR 1 उसके लिए। इसी तरह रूल 80 के अंदर इन्होंने चेंज किया, जिसके अंदर जो पहले क्योंकि 17, 18 और 18, 19 का था कि आपका 5 करोड़ से ऊपर ऑडिट का है, तो अब इन्होंने 19, 20 और उसके अंदर ऐड कर दिया। इसी तरह जो 138E है, जिसमें कि अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आप ई-वे बिल जनरेट नहीं कर सकते, तो इन्होंने उसका एक क्लैरिफिकेशन वो दिया कि जो भी 20 मार्च से लेके 15 अक्टूबर तक का अगर कोई जो रिटर्न हमारी 3B है या GSTR 1 है, उसको जो अब हमें उसका लिए उसको 2 कॉन्जिक्यूटिव पीरियड नहीं देखेंगे, उसके बाद में देखेंगे उसको। इसी तरह इन्होंने कुछ जो फॉर्म्स हैं उनमें अमेंडमेंट किया है 2A, GSTR 5, GSTR 5A, 9 एंड 9C। तो ये कुछ रूल्स में अमेंडमेंट किए हैं। नो GST रिफंड टू SEZ यूनिट डेवलपर्स, ये केस आया ऑनरेबल एपेलेंट अथॉरिटी GST आंध्र प्रदेश in case of Vachi International Private Limited held that SEZ unit developer shall not claim any refund against input tax credit involved in supply received by them from non-SEZ suppliers, and GST law facilitated eligibility for refund claim to the supplier who made supplies to the SEZ unit developer with payment of tax as a zero rated supply under section 16(1) of the IGST Act। इसके अंदर बेसिकली केस ये था कि SEZ जो यूनिट थी उसने जो इनपुट्स दिए उसका उन्होंने रिफंड क्लेम किया, तो वो रिफंड क्लेम उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो ये वाची इंटरनेशनल ये एपेलेंट अथॉरिटी के पास चले गए, तो अथॉरिटी ने कहा कि जो भी SEZ के अंदर सप्लायर सप्लाई करता है रिफंड 89 रूल 89 के अंदर वही एलिजिबल है, SEZ यूनिट या डेवलपर उसका रिफंड क्लेम नहीं कर सकती। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो सप्लायर है वही आपका रिफंड क्लेम करेगा।
Deposit of amount to Consumer Welfare Fund. The Honorable Court and National Anti-Profiteering Authority have given order to various firms to deposit the amount to the Consumer Welfare Fund. Till the time proper head of account opened for Consumer Welfare Fund, the same may be deposited in the form of demand draft in favor of Commissioner Trade and Taxes. ये Department of Trade and Taxes ने एक नोटिफिकेशन इशू किया है जिसके अंदर जैसे एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी कोई भी ऑर्डर करती है, वो कहते हैं जो अमाउंट है वो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जमा करना है, लेकिन अभी तक उसका कोई प्रॉपर हेड नहीं खुला है, तो इसलिए उसको कलेक्शन करने के लिए उन्होंने कहा है कि जो भी एसएससीज को इस तरह के ऑर्डर हैं वो आप डिमांड ड्राफ्ट बना के कमिश्नर ऑफ ट्रेड एंड टैक्सेस के नाम से और कंसर्न वार्ड में आप जमा करा सकते हैं उसको। ये इनवॉइसिंग और ये क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम ये नव्या जी लेंगे, वो आपसे डिटेल में पूरा इसका डिस्कशन करेंगे। Extension of LLP settlement scheme 2020. The MCA issued circular in continuation of the Ministry of General circular. The scheme was extended till 31st December 2020. इसमें जो स्कीम थी हमारी LLP settlement scheme वो भी इन्होंने 31st December 2020 तक एक्सटेंड कर दी, और इसमें एक इन्होंने और किया कि all other requirement to insert circular shall remain unchanged. If the statement of account and solvency for the financial year 1920 has been signed beyond the period of 6 months from the end of financial year but not later than 30th November, the same shall not be deemed as non-compliance. तो ये इन्होंने अभी क्लैरिफिकेशन किया है, क्योंकि पहले क्लैरिटी नहीं थी कि जो अगर हमने कोई सॉल्वेंसी का सर्टिफिकेट, क्योंकि उसमें था कि आप विद इन सितंबर ही वो इशू हो सकता है, तो उसका इन्होंने अब क्लैरिफिकेशन दे दिया, तो आप उसको अब 31 दिसंबर तक फाइल कर सकते हैं। Relaxation in 182 days requirement. The MCA has issued circular and clarified that non-compliance of minimum residency in India for a period of at least 182 days in the year by at least one director in every company under section 149 shall not be treated as non-compliance for the financial year 2021 also. पहले इन्होंने 1920 का कहा था, अब 2021 में भी क्योंकि कंपनीज के अंदर कंपल्सरी होता है कि कम से कम एक डायरेक्टर 182 दिन से ज़्यादा यहाँ इंडिया में रहना चाहिए, तो इसलिए अगर कोई नहीं रहता है तो इन्होंने एक सर्कुलर से क्लैरिफाइड कर दिया कि वो नॉन कंप्लायंस नहीं मानी जाएगी। एक्सपोजर ड्राफ्ट ऑफ अपग्रेडेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर पब्लिक कमेंट, इसके अंदर इन्होंने कहा है कि जो हमारा नफरा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर, तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है वो कुछ रिवाइज कर रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, तो उसी के लिए इन्होंने एक जो एक्सपोजर ड्राफ्ट इशू किया है, रिवाइज AS 21 द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट हैज बीन इशूड बाय ASB फॉर कमेंट्स फॉर द लास्ट डेट बीइंग 3rd December 2020 व्हिच कैन बी असेस्ड। इन्होंने वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, उस पर आप अपने कमेंट्स भेज सकते हैं जो भी इससे रिलेटेड रिवाइज जो कर रहे हैं। Peer review certificate, the ICI has given further extension regarding the validity of peer review certificate in the wake of COVID-19 spurt across the country. If the peer review process needs to be initiated and the validity of certificate is expiring after lockdown till 28th February 21, the effective date of validity of peer review certificate has been extended to 31st March 2021. And in these cases, the practicing unit have to get their peer review completed and submit final clean report to the board before 31st March 2021. तो जिनके भी peer review certificates expire हो रहे थे लॉकडाउन से लेके 28 फरवरी तक, तो उनको एक जनरल एक्सटेंशन दे दी इन्होंने कि 31 मार्च 2021 तक आपका वो peer review certificate वैलिड रहेगा, लेकिन वो वैलिडिटी तभी है आपको उसकी रिव्यू रिपोर्ट जो है वो भी 31 मार्च 2021 तक सबमिट करनी है। UDIN verification by Income Tax Department. In line with ongoing initiative of the Income Tax Department for integrating with other government agencies and bodies, Income Tax e-filing portal has completed its integration with the ICAI portal for validation of unique document identification number generated from ICAI portal for documents certified attested by them. तो इसके अंदर अब जैसे अभी टैक्स ऑडिट का चल रहा है, तो टैक्स ऑडिट के अंदर आपको यूडीन नंबर जनरेट करके भी पोर्टल पे डालना है, तो अब इन्होंने वैलिडेट करने की भी फैसिलिटी उसके अंदर दे दी। अब आपको यूडीन नंबर उसका वैलिडेट भी करना पड़ेगा, और इसमें साथ में इन्होंने ये कह दिया फॉर एनी रीजन सीए वाज नॉट एबल टू जनरेट यूडीन बिफोर सबमिशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट सर्टिफिकेट, द इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल परमिट सच सबमिशन सब्जेक्ट टू चार्टर्ड अकाउंटेंट अपडेटिंग द यूडीन जनरेटेड फॉर ए form within 15 calendar days from the date of form submission of the income tax e-filing portal. If the UDIN for the audit report is not updated within 15 days provided for the same,
such audit report certificate uploaded shall be treated as invalid submission. तो अब आपको साथ में यूडिन जनरेट करके डालना भी है, उसको वैलिडेट भी करना है, और उसका आप अगर आप मान लो उस समय जनरेट नहीं कर पाए जिस समय आपने अपलोड की, तो आप उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपको उसको अपडेट करना पड़ेगा और वैलिडेट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं तो जो आपने ऑडिट रिपोर्ट और सर्टिफिकेट अपलोड किया शैल बी ट्रीटेड एज एन इनवैलिड सबमिशन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो कि आपको सबको ध्यान रखना है। Amalgamation of Lakshmi Vilas Bank with DBS Bank effective from 27th November 20, all banks branches of Lakshmi Vilas Bank shall operate as branches of DBS Bank India Limited। RBI ने एक प्रेस रिलीज करके ये लक्ष्मी विलास बैंक को इसमें मर्ज कर दिया DBS Bank India Limited में। I have compiled the compliance date for the rest month of November and the whole month of December. You can check the relevant dates. Thank you very much. Thank you very much for the patient hearing. Thank you. Thank you अशोक जी for the wonderful sir. presentation. हमेशा की तरह आप हमारी नॉलेज एनहांस करते रहते हैं। Now it's time for the second technical session, and the speaker before us is CA Navya Malhotra. Although he is renowned, हमारे पहले सेमिनार में रोहिणी स्टडी सर्कल के सेमिनार में पहले भी वो आ चुके हैं, शायद दूसरा या तीसरा वो सेमिनार था जिसमें नव्या जी आए थे, and he needs no introduction, but as a protocol I would request Ravi Shankar Arora ji to read out his brief profile. Over to Ravi ji. Ravi ji, voice. Thank you, Ajay Jain ji, Thank you, for sir. giving me the opportunity to introduce CA Navya Malhotra. It is a great pleasure to have CA Navya Malhotra with us for the second time as a GST speaker on G. CA Navya Malhotra is an associate member of Institute of Chartered Accountant of India since January 2016 and is a partner and indirect tax head of VK Dhingra and Company. He was associated with Big Four consulting firms, Ernst & Young and KPMG India in indirect tax practice and accounting advisory practice. He is a special invitee to the Indirect Tax Committee of ICI for 2021. He is forming part of faculty of ICI for GST and financial management. He has deliberated for more than 250 seminars, workshops, trainings, camps on GST. He is a regular writer and author of too many discussion forums, magazine, and portals. He is also an author to NIRC of ICI monthly magazine for CA members and various NICASA publications from time to time. He is the chief editor and mentor to the venture Tax Visa India. Now I invite today's charismatic speaker CA Navya Malhotra for his deliberation on GST. बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी, अजय जी, Thank you. अशोक जी, विपुल भैया और सारे पार्टिसिपेंट्स मेंबर्स हु हैव कनेक्टेड। मैं ये कहूंगा सर कि जीएसटी अभी जैसे अशोक जैन जी ने बिल्कुल मतलब बिल्कुल बड़े स्मूथ तरीके से हमें क्या कहते हैं सर, आपने ट्रेलर भी दिखाया और साथ ही साथ अपडेट भी कर दिया। दैट इज अ टू वे सर्व्ड पर्पस फ्रॉम योर डेलिब्रेशन एंड आई रियली अप्रिशिएटेड कि सर कैसे बिल्कुल क्रक्स इम्पोर्टेंट चीजों को आपने इकट्ठा करके विद इन योर वेरी ब्रीफ टाइम सर आपने इसको कम्युनिकेट कर दिया और अंडरस्टैंड करा दिया। तो अशोक जी ये चीज आपसे थोड़ी सी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि मैं अपने डेलिब्रेशन में बोलता ही रह जाता हूँ और समय खत्म हो जाता है। तो कैसे अपने समय के अंदर अंदर आपको रहकर बेस्ट देना है सर, दैट इज हाईली अप्रिशिएटेड। हाउएवर सर जीएसटी अब जितना मजा जीएसटी को शुरू से लेकर अब तक आ रहा था, अब सब लोगों को मैं अवेयर करना चाहता हूँ। द fun element of GST is going to start from 1st January 2020-21. Actually what we are going to see as a change, अशोक जी आप भी अप्रिशिएट करोगे कि जीएसटी में 1 जनवरी 2021 से बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। हाँ जी सर। एंड
particularly that are, I believe, are a game changer in sense of input tax credit, in the sense of return filing, in the senses of compliances, e-invoicing, everything they are trying to integrate and implement at one phase and one go. ठीक है, तो हाँ जी सर। हमारा 1 जनवरी 21 से हमारे पास बहुत सारी नई चीजें जीएसटी के अंदर इंप्लीमेंट हो रही है। मैंने करीबन 350 के करीब स्लाइड्स बना रखी हैं सर। 350 स्लाइड्स में ऑब्वियसली बात है, हम सारा कंटेंट 350 स्लाइड्स में फॉर एजुकेशनल पर्पस शेयर भी कर दूंगा सर। पर अभी हम क्रक्स जल्दी से सारी चीजों को अच्छे से पिकअप करते चलेंगे सर। आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल। यस सर, यस सर देखिए, मेरी आदत यही है कि मैं पीपीटी ज्यादा यूज नहीं करूंगा सर, बट मैं थोड़ा बहुत पीपीटी को रेफर कर रहा हूं, उसके बाद में सारा कुछ नोटपैड पेन लेके आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा सा लेकर बैठेंगे। तो अभी सर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीजें चेंज हुई जीएसटी के अंदर। आप अगर नोटपैड पेन लेके बैठ सकते हैं तो सर थोड़ा सा साइड बाय साइड नोट भी करते रहेंगे, अच्छा होगा सर। हमारे पास करीबन 81 से लेकर 88 तक नई नोटिफिकेशंस लॉन्च हुई सर। ये सारी नोटिफिकेशंस अगर आप देख रहे हैं तो 10 नवंबर के आसपास आई हैं सर। 10 नवंबर पर्टिकुलरली गेम चेंजर ट्रांजैक्शंस और नोटिफिकेशंस के अंदर, इस सब के अंदर कवर किया गया है ट्रांजैक्शंस को भी, इवेंट्स को भी, मैं कहूंगा कंप्लायंसेस को भी। तो साथ में पहले जल्दी से देखते जाएंगे सर। देयर इज, मैं पहले एक बार यहाँ पर साथ में लिखता जाता हूँ, ये देखेंगे सर। सबसे पहले मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट चेंज ये हुआ, देयर इज अ न्यू स्कीम। सर मैं पहले आपको बिल्कुल क्रक समझा देता हूँ हो क्या रहा है, फिर उसकी इंटीग्रिटी में जाएंगे अंदर डीप में। सर देयर इज अ न्यू स्कीम ऑफ जीएसटी। न्यू स्कीम ऑफ जीएसटी क्या है? एक स्कीम आई सर, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम। सर ध्यान से सुनेंगे, होता क्या है, हमारे पास जीएसटीआर 1 और 3B होती हैं सर। हमारे पास 1 और 3B होती हैं सर। ये जो मैं सारी स्टोरी आपको बोल रहा हूं, दीज आर एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जनवरी 2021 से ये सारा कुछ लॉन्च हो जाएगा, ठीक है सर। क्या हो रहा है, आप ध्यान से सुनिए। सब कुछ इन प्लेस होने के लिए 1 और 3B होती है हमारी, 1 और 3B। जब मैं 1 और 3B की बात करता हूं आपसे, तो मेरे पास 1 की क्वार्टरली और मंथली फाइलिंग होती थी। जैन साहब, मंथली फाइलिंग कब होती है? सर 11 तारीख तक। नहीं सर, कब वन मैं क्वार्टरली कब चूज कर सकता हूँ, मंथली क्या क्राइटेरिया है सर? सर जिनका मतलब 1.5 करोड़ से ऊपर है उनका तो मंथली है, और जो 1.5 करोड़ से नीचे है वो क्वार्टरली है। जैन साहब, आप ये तो नहीं सोच रहे मैं आपको परेशान तो नहीं कर रहा, साथ साथ बस मैं इंटरेक्टिव रखने के लिए कर रहा हूँ सर, ठीक है सर। बिल्कुल आपने अप्रोप्रिएट कहा, जिसकी टर्नओवर 1.5 करोड़ है, 1.5 करोड़ से कम थी वो क्वार्टरली में जा सकता था, लेकिन जिसकी 1.5 करोड़ से ज्यादा थी उसको मंथली ही फाइल करनी होती है, ठीक है ना सर। ये तो प्लस जिसकी 1.5 करोड़ से ऊपर होती थी उसको मंथली जाना होता है सर। 3B में हमारे पास क्या ऑप्शन होता था? क्या मंथली क्वार्टरली होता था? नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन था, मंथली। सबको मंथली करनी होती थी, ठीक है। तो सर जब इन्होंने अब एक नई स्कीम लेके आए कि भाई 3B भी आप क्वार्टरली कर सकते हो। सर ध्यान से सुनिए, फिर से बोल रहा हूं, आप 3B भी क्वार्टरली कर सकते हो, बट क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट है। इसके लिए दे हैव इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू चालान कॉल्ड PMT 06। ये PMT 6 नाम का एक नया चालान आया है जिसमें आपको मंथली पेमेंट करनी होगी। मैं अभी ये भी डिस्कस करूंगा कि पेमेंट्स के अंदर आपके पास क्या ऑप्शंस हैं। यू हैव अ फिक्स सम मेथड एंड अ एक्चुअल मेथड, अभी डिस्कस करेंगे सर। जीएसटी में देखिए सर, पिछले बजट में इनकम टैक्स से अशोक जी एक चीज तो समझ आ गई थी कि आपको हर चीज के लिए 2 ऑप्शन मिलेंगे, ऐसे करके देख लो या वैसे करके देख लो, जो बेटर है वो करके देखो। हाँ, वो इंडिविजुअल में कंपनीज में सबको ऑप्शन दिए इन्होंने, है ना अजय सर, ऐसा ही है। तो ऐसा ही इन्होंने कहा क्यों ना जीएसटी में भी फन एलिमेंट डाल दिया जाए। आज आपके क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट के अंदर उन्होंने बोला आपको पेमेंट तो मंथली करनी है, रिटर्न आप क्वार्टरली कर सकते हो। सर ध्यान से सुनिए, इसका थ्रेशोल्ड रखा गया है क्या? 5 करोड़। 5 करोड़। इन्होंने कहा जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ होगी वो इस स्कीम में या तो क्वार्टरली रह सकता है या मंथली। अब ध्यान से सुनेंगे सर, क्या ये 1.5 करोड़ की टर्नओवर, ध्यान से सुनेंगे,
मुझे अशोक जी, अजय जी एक जवाब देना सर, आज तक हम ये क्वार्टरली मंथली जीएसटीआर 1 करते आए, ये जो 1.5 करोड़ की टर्नओवर है ये आप चेक करते हो टोटल पैन के अंदर? हाँ जी। सर क्या आपके 2 स्टेट में रजिस्ट्रेशन होते हैं, तो क्या आप एक स्टेट में क्वार्टरली चूज करो अगर आपकी 1.5 करोड़ से कम है, और दूसरी स्टेट में मंथली चूज करो, ऐसा अलाउड होता था? नहीं, आई डोंट थिंक। अजय जी कह रहे नहीं। अशोक सर आपको क्या लगता है? सर आप क्वार्टरली वाला मंथली फाइल कर सकता है, अगर फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग के टाइम में वो ऑप्शन दे दे तो कर सकता है वो सर मैं जीएसटीआर आपसे वही कहना चाह रहा हूँ, आपकी रजिस्ट्रेशन 2 स्टेट में है, एक है दिल्ली के अंदर, एक है मेरी महाराष्ट्र के अंदर। क्या मैं चैट बॉक्स में सर और लोगों से भी सॉलिसिट करते हैं इसका रिप्लाई। सर चैट बॉक्स में लिखेंगे क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी 2 स्टेट में रजिस्ट्रेशन थी, ठीक है, आपकी 2 स्टेट में रजिस्ट्रेशन थी, और आपने जब 2 स्टेट में रजिस्ट्रेशन ली तो आपके पास क्या ऑप्शन था कि मैं इस स्टेट में मंथली चला जाऊं और इस स्टेट में क्वार्टरली रखूं? जीएसटीआर 1 जल्दी से चैट बॉक्स में यस और नो लिखिए सर, बहुत इंटरेक्टिव सेशन होगा, मैं आपको बता रहा हूँ सर। ऐसी ऐसी चीजें ब्रेनस्टॉर्म करने की कोशिश करूंगा। ये आप स्लाइड देखो सर, ऐसा मत कहना कि मैं पढ़ के नहीं आया, मैंने 343 स्लाइड्स बना रखी हैं, पढ़ के मैं पक्का आया हूँ, बट मैं आप सबके साथ डिस्कशन करना चाहता हूँ बस। रवि जी कह रहे हैं नहीं, गौरव सर कह रहे हैं नो, इट विल बी सीन फॉर अ कंपनी, ठीक है। और कोई सर, और कोई रिस्पॉन्स? सर Q&A में लिख रहे हैं, ठीक है। गुप्ता जी कह रहे हैं नहीं। सर देखिए विपुल भी, आपको क्या लगता है, आप भी जीएसटी में सर ट्राई करो? नहीं सर, जो मैं एक स्टेट में चूज करता हूँ वही टेक्निकली वहां दूसरी स्टेट में भी वही चूज करना चाहिए। ठीक है, तो सब ये मान के चल रहे हैं कि हमारा एक टेक्निकली थॉट प्रोसेस ये कहता है कि भाई जो इस स्टेट में चूज किया है ना वही दूसरे स्टेट में भी होना चाहिए। बट टेक्निकली मैं आपको आज बताऊं सर, देयर इज नो एज सच रिस्ट्रिक्शन ऑन द पोर्टल टू स्टॉप यू फ्रॉम चूजिंग हेयर क्वार्टरली एंड मंथली हेयर। तो आइडियली आई फाउंड पर्सनली इन सर्टेन केसेस लोगों ने ऐसा किया कि दूसरी जगह क्वार्टरली रखा और एक जगह मंथली रखा, एंड टेक्निकली आज तक डिपार्टमेंट की साइड से कुछ आया नहीं है सर प्रॉब्लम। तो लेकिन तो, अब आ जाएगा। हाँ लेकिन अब क्या हुआ सर, ध्यान से सुनिए, ये जो 5 करोड़ वाली स्कीम है इसमें भी अगेन आपको चेक तो पैन वाइज करना है, बट यहां पर इन्होंने क्लियरली लिख दिया सर, इन्होंने क्लियरली लिख दिया है you can choose in one state as quarterly and in another state as monthly also. सर यहाँ पर इट इज सिंपली क्लैरिफाइड कि अगर आपकी 5 करोड़ से कम की टर्नओवर है, आपकी दिल्ली में भी रजिस्ट्रेशन है और आपकी महाराष्ट्र में भी रजिस्ट्रेशन है, आप चाहो तो दिल्ली में क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट की स्कीम ऑप्ट कर सकते हो और महाराष्ट्र में मंथली 3B की ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेलकमिंग चेंज, ठीक है। ये हमें चीजें याद रखनी होंगी इसमें। चलिए अब सबसे पहले ये मैं बेस पे आया कि टेक्निकल है, अब इसमें क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा इसका मॉडल समझने की कोशिश करते हैं, करना क्या चाह रहे हैं सर। इन्होंने बोला कि सामने आपकी 3B को हम क्वार्टरली कर देते हैं। सर अब आप समझिएगा, मैं 2-3 चीजें डिस्कस करूंगा, अभी मैं 1 के ऊपर चर्चा नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ QRMS स्कीम की बात कर रहा हूँ, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, ठीक है। मैं इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें हमारे पास 2 पोर्शन है सर, मेरे पास 2 पोर्शन क्या हुए, एक हुआ मेरे पास सर PMT 06 और एक हुई मेरी GSTR 3B। सर मेरे को इसमें ध्यान क्या रखना है, मेरे पास होते हैं एक क्वार्टर में 3 महीने, मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3। जब मेरे पास एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, हर क्वार्टर में 3 महीने हैं सर, M1 M2 M3, सॉरी ये M3 लिखना था सर, वो ये कहता है कि आप मंथ 1 मंथ 2 में आप फाइल करेंगे क्या, EMT 06। ध्यान से सुनिए सर, मैं बहुत लेमैन की तरह समझा रहा हूँ, नोटिफिकेशन अगर आप पढ़ने लगे तो ये बाउंस हो जाती हैं सर, टेक्निकली थोड़ी सी कंफ्यूजिंग भी है सर। मंथ 3 में ये क्या कहता है, आप क्या करेंगे मंथ 3 में, आप क्या करोगे, मंथ 3 में आप फाइल करेंगे अपनी 3B को, मंथ 3 में हम फाइल करेंगे अपनी 3B को, ठीक है। यहां मैं फाइल कर रहा हूं अपनी 3B को। सर फिर से अब आपको एक चीज रिपीट करके बोल रहा हूं, ये है तो एक क्वार्टर पूरा, ये है तो पूरा एक क्वार्टर। सर यहां पर उसने PMT 06 में क्या बोला
आपके पास दो ऑप्शंस हैं। क्या ऑप्शन है? आपके पास दो ऑप्शन है टैक्स को जमा करने के। सर एक को मैं कहूंगा, इन्होंने बोला फिक्स सम मेथड और एक बोला एक्चुअल मेथड। मैं इसको कहूंगा सर फिक्स सम मेथड को मैं ये बोलना चाहूंगा एग्जैक्टली अगर हमें याद रखना हो सर एडहॉक मेथड। एडहॉक का मतलब क्या होता है? मैंने विदाउट एनी कैलकुलेशन आपसे ब्लंटली बोल दिया कि बस एक पैसा जमा कर दो भाई, ये सिंपल एक सम है वो जमा कर दो। दैट इज व्हाई दे कॉल इट एज अ फिक्स सम मेथड। सर इन्होंने क्या बोला? इन्होंने कहा कि आप चेक करोगे कि पिछले, इसमें एडहॉक मेथड में क्या बोला, आप चेक करिए कि क्या आपकी पिछला क्वार्टर में क्वार्टरली रिटर्न थी या मंथली रिटर्न थी। आपका प्रीवियस क्वार्टर में यानी कि प्रीवियस रिटर्न फाइलिंग पीरियड में क्या क्वार्टरली रिटर्न थी या मंथली रिटर्न थी? अश्विनी जी, क्वार्टरली रिटर्न इज ऑप्शनल, यस, इट इज नॉट कंपल्सरी, इट इज अ वॉलंटरी स्कीम। इसने कहा एडहॉक मेथड में आप चेक करिए कि प्रीवियस में आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते थे या मंथली। अगर आप क्वार्टरली करते थे तो आप चेक करिए सर पिछले क्वार्टर में जितनी पेमेंट मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3 में हुई, इनका सम करो और उसका 35%, सर 35% आपको कैश में जमा करना होगा। आपको कैश में जमा करना है। अगर आपकी पिछली रिटर्न मंथली में थी तो जो मंथ 3 के अंदर लास्ट मंथ में आपने जो जमा किया उसका 100% आपको कैश में जमा करना है। 100% कैश में जमा करना है। सर ये 35% का क्या फंडा है, ध्यान से सुनिए। उन्होंने 100 को डिवाइड किया 3 से, आता है 33.33, राउंड ऑफ करके वो 35 पे चले गए। सब कह रहे हैं 35 कहां से आया भाई? मैं सर बता दूं 35 कहां से आया। जैसे ही आपकी पिछली रिटर्न अगर मंथली थी तो उसने कहा यार फिर तो 100% का ही फंडा रहेगा ना सर, तो उसने पूरा 100% का फंडा ले लिया उस केस में। सर ये रहेगा मेरा क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट का थोड़ा सा बेसिक ढांचा, स्केलेटल की बात करी मैंने। अब आपने कहा नहीं सर लास्ट 3B में आया, जब मैं क्वार्टर 3 की अपने सॉरी मंथ 3 की 3B में आया तो क्या दिखेगा सर? उसमें दिखेगा आपने कुछ मंथ 1 और मंथ 2 में आइडियली 35 और 35% तो जमा कर ही दिया होगा कैश के अंदर। सर मैं फिर से बोल रहा हूं कैश में डिपॉजिट कर दिया होगा। अगर आपने 35 कर दिया तो कितना हो गया सर? 70% ऑलरेडी हो गया। उसने कहा थर्ड मंथ में अगर आप अपनी बैलेंस लायबिलिटी पे कर देना, ठीक है, और अपना क्वार्टर पूरा क्लोज कर लेना। यानी कि 3B जब हम फाइल करने लगेंगे तो वी विल हैव टू डू द एक्चुअल कैलकुलेशन। यहां पर कोई फिक्स सम मेथड नहीं है सर, यहां पर पहुंचकर आपको तीनों महीनों की एक्चुअल कैलकुलेशन करनी होगी। दिस इज द फिक्स सम मेथड, ठीक है। अब आते हैं सर एक्चुअल वाले पे। एक्चुअल वाले में आपकी चॉइस है सर, अगर आप एक्चुअल रखना चाहते हैं आप एक्चुअल के अंदर क्या कर सकते हैं, यू हैव टू डू दी ऑल कैलकुलेशंस एक्चुअली। इसमें कोई एडहॉक परसेंटेज नहीं है। इसके लिए आपको फिर प्रॉपर रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करके रखने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि कभी आपसे स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न में कुछ मांगा गया या कुछ भी डिफरेंस हुआ या डिस्क्रिपेंसी हुई तो यू नीड टू जस्टिफाई इट। तो अब हमारे पास क्या हो गया सर? हमारे पास दो चीजें हो गई, या तो हम फिक्स सम मेथड पे जाएं या एक्चुअल मेथड पे जाएं। चलिए एक बार इसको थोड़ा सा फिर से एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं और अपनी क्लैरिटी ले लेते हैं सर। पहले मैं QRMS स्कीम के बारे में डिस्कस करूंगा, फिर हम 2A 2B पे डिस्कस करेंगे सर। ये देखिए सर, चलिए सर, quarterly return monthly payment scheme, this is applicable from 1st of January 2021। अभी मैंने आपको बेसिक फ्रेमवर्क बताया, अब मैं आपको टेक्निकली बताऊंगा, अब आपको शायद सारा कुछ समझ आने लग जाएगा सर। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने कहा भाई जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है और ऊपर है उन दोनों के लिए सेपरेटली क्वार्टरली और मंथली स्कीम आई है। सर मैं आपसे फिर बोलूंगा ये सर्कुलर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे।
सर्कुलर नंबर 143/13/2020 ये आया मेरा 10 नवंबर 2020 को, यानी कि इसी साल। ये गाइडलाइंस और प्रपोज्ड विद एन एग्जांपल ये समझाता है कि कैसे आपको क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम को अप्लाई करना है। सर इसमें कौन एलिजिबल है? ये नोटिफिकेशन नंबर 84 ने बोला इसमें एलिजिबल वो है जिसकी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से कम होगी, यानी कि 5 करोड़ से ज्यादा जिसकी होगी ही शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर द स्कीम फ्रॉम द नेक्स्ट इमीडिएट क्वार्टर। सर ध्यान से समझिए, अगर एक रनिंग फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, आपकी मंथ 1 और मंथ 2 में, यानी मंथ 2 में लेटेस्ट से टर्नओवर क्रॉस कर गई, फिर भी आप उस क्वार्टर को QRMP स्कीम में फाइल कर सकते हो। बट इमीडिएटली सक्सीडिंग द नेक्स्ट क्वार्टर जो आएगा उसके बाद, उसमें आपको मंथली में कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने आप। ठीक है, इज इट ओके सर? यहां पर ध्यान से सुनिए, अब आपको क्या समझाना सर, आपको यहां पर इन्होंने, अब ये कैसे डिसाइड होगा कि आप मंथली में रहेंगे या क्वार्टरली? इन्होंने एक डीमिंग फिक्शन निकाला सर, दिस इज अ डीमिंग फिक्शन। ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं ना सर, अब हम नए सिस्टम में जा रहे हैं। आज हम कहां खड़े हैं? नवंबर में। नवंबर खत्म हो गया, दिसंबर चालू हो गया सर। इन्होंने बोला अगर आप अक्टूबर की रिटर्न, टैक्स पेयर्स ध्यान से सुनिए, जो अपनी अक्टूबर की रिटर्न 30 नवंबर तक भर देंगे, ध्यान से सुनिए, फिर से बता रहा हूं ट्रिगर पॉइंट सर, जिन्होंने अपनी 3B की रिटर्न अक्टूबर की 30 नवंबर की भर दी, दे शैल बी माइग्रेटेड बाय अ डीमिंग फिक्शन। डीमिंग फिक्शन क्या है? उन्होंने कहा जिसकी एग्रीगेट टर्नओवर यानी कि पैन बेस्ड टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ रहेगी, ध्यान से सुनिए 1.5 करोड़ रहेगी, और वो अपनी GSTR1 भी क्वार्टरली कर रहा है, तो उसकी 3B भी डीमिंग फिक्शन में क्वार्टरली चली जाएगी। यानी कि उसको वो PMT6 मंथ 1 और मंथ 2 के लिए भरना होगा, और 3B भरना होगा किसके लिए? मंथ 3 के लिए। अगर आपकी टर्नओवर फिर भी, ध्यान से सुनिए, 1.5 करोड़ तक थी और आपने फिर भी GSTR1 वॉलंटरली मंथली चूज करी हुई थी, तो आपकी 3B क्या डीम करी जाएगी? मंथली। यानी कि फिर आप क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम से बाहर हो गए। इज इट क्लियर सर? ये चीज हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से सुनिए, नेक्स्ट उसने क्या बोला? इसने कहा रजिस्टर्ड पर्सन हु हैव द एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन 1.5 करोड़। क्यों? क्योंकि इस स्कीम की क्या लिमिट थी सर? 5 करोड़। 5 करोड़ थी ना लिमिट सर। अगर आपने, फिर से सुनिए, आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से 5 करोड़ की थी सर, ऑब्वियसली फिर तो GSTR1 का कोई लेन देन नहीं है, ऑब्वियसली मंथली होगी। ठीक है, अगर आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से 5 करोड़ तक है, क्या है? एग्रीगेट टर्नओवर, यानी कि पैन बेस्ड टर्नओवर। इन सच अ केस आप फिर से डीम कर लिए जाएंगे किस चीज के लिए? क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम के लिए। यहां तक क्या आप सबको समझ आ रहा है सर? मुझे हाँ या नहीं में बताइए सर, बोरिंग तो नहीं लग रहा? समझ आ रहा है? क्लैरिफाइड? अशोक जी? हाँ ठीक है सर। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, प्रोसीड। ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, आपने कहा नहीं यार मेरे को डीमिंग फिक्शन में नहीं रहना, मेरे को ये कहानियों में नहीं पढ़ना, PMT6 में नहीं पढ़ना, ये 35% क्या है, फिक्स सम मेथड क्या है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। आपने कहा आई वांट टू चेंज टू मंथली। आपने कहा यार मैं मंथली में जाना चाहता हूं, क्या कर सकता हूं कुछ? मेरे को डीमिंग से नहीं जाना। तो उन्होंने कहा डिफॉल्ट ऑप्शन हैज बीन मेड अवेलेबल फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंटीसिपेटेड बिहेवियर। However, such person are free to change the option कब तक? From 5th of December से 31 जनवरी तक। इसलिए अजय जी ने जब बोला कि ये सेशन होना चाहिए, जब मेरे को बात हो रही थी अशोक जी, मैंने कहा ये 5 दिसंबर आने से पहले हमारे यहाँ पे रोहिणी स्टडी सर्कल के लोग वेल वर्स्ड हो, तो ही हम एक्चुअली में टाइम वेस्ट ना करते हुए ऑप्शन को सही चूज कर पाएंगे। सर आपके पास अगर एक एप्रोप्रिएट समय होगा तो आप मंथली या क्वार्टरली में, आपकी चॉइस है कि आपने जाना है या नहीं जाना। सर अगर आपने 31 जनवरी तक कुछ भी डिसाइड नहीं किया तो क्या माना जाएगा? दैट यू हैव एक्सेप्टेड देयर डीमिंग में, आपने उनकी डीम्ड बिहेवियर को एक्सेप्ट कर लिया।
तो दिस इज माय सिंसियर हम्बल रिक्वेस्ट, आप अपने चीज को क्रिटिकली इवैल्यूएट करिए और फिर ध्यान दीजिए। सर अब उसने बोला कि अगर 5 करोड़ की टर्नओवर क्रॉस कर गई तो क्या होगा? ध्यान से सुनिए, whose aggregate turnover crosses 5 crore rupees during a quarter in a financial year shall opt for furnishing on a monthly basis from, कहां से सर? मैंने बोला था सर सक्सीडिंग क्वार्टर। देखिए मैं आपको सारा फ्रेमवर्क समझा चुका हूं पहले, अब मैं आपका टेक्निकली 1 to 1 लाइन टू लाइन चल रहा हूं उसमें। In other words, in case the aggregate turnover exceed 5 crore rupees during any quarter in the current financial, the registered person shall not be eligible to opt for the scheme from the immediate next quarter. Immediate next quarter से आपकी रिटर्न को चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है? सर इसमें प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का कोई लेना देना नहीं है नहीं एग्रीगेट टर्नओवर का? नहीं, इसमें कोई लेन देन नहीं। अभी देखिए हम ट्रांजिशन में जब हैं तो ट्रांजिशन तो उसने ऐसे करा दिया, ठीक है। फिर हम रनिंग फाइनेंशियल ईयर में आ गए। नहीं, मेरा सवाल रहेगा फॉर फर्स्ट क्वार्टर नेक्स्ट ईयर। यस, जनवरी का, तो वो यहाँ से चूज होगा। फाइनेंशियल ईयर वाइज बात कर रहा हूँ, जो नेक्स्ट मेरा जून क्वार्टर आएगा। आप मान के चलिए मेरा 2021-22 में हाँ अप्रैल जी। से जून वाला क्वार्टर आएगा, अप्रैल से जून वाला क्वार्टर, उसके लिए मुझे टर्नओवर कौन सी देखनी हुई? क्या मैं वापस जीरो से शुरू होऊंगा? हाँ, या अब तब आपने मुझे बोला। प्रीवियस ईयर? देखो नहीं, उसमें हमें प्रीवियस मंथ और प्रीवियस ईयर में जाना होगा। आपका जो स्कीम अब आप 31 जनवरी को चूज कर लोगे ना भैया, 31 जनवरी से पहले वही कंटिन्यूड रहेगी। अभी मैं आपके साथ ये विद एग्जांपल लूंगा, ये देखो आप जो कह रहे हो वो यहाँ से आपको समझ आ जाएगा। ये देखो आपने बोला आपकी 19-20 में, अभी तक जो 19-20 चल रहा था, ठीक है, उसमें टर्नओवर थी 3 करोड़ और अप टू नवंबर 2021 में आपकी टर्नओवर है 3 करोड़। क्या आप इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हो? यस कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम रनिंग फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ से नीचे हैं, ठीक है। नेक्स्ट गए हम क्या, ध्यान से सुनिए भैया, हमने बोला आपको आपकी 19-20 में तो 3 करोड़ थी, आपने जैसे बोला ना प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर को देख ही नहीं रहे हम। हमने क्या बोला, हम रनिंग फाइनेंशियल ईयर में अप टू नवंबर 5.5 करोड़ की टर्नओवर कर चुके हैं, क्या मैं एलिजिबल हूं? नहीं। अब आते हैं इस केस में, मेरी पिछले फाइनेंशियल ईयर में, ध्यान से सुनना भैया, आपकी 6 करोड़ हो गई। अब आया आपका वाला केस भी है, यही केस कह रहे थे आप, और आपकी 20-21 में टर्नओवर अब तक सिर्फ क्योंकि कोविड की वजह से 1 करोड़ ही हुई, क्या आप एलिजिबल हो? यहीं पर समझे आप बात। मैंने बोला जहां पर भैया दोनों चीजों को कंप्लाई करना है, अगर मेरे पास रनिंग फाइनेंशियल ईयर में, ध्यान से सुनो, पिछला फाइनेंशियल ईयर भी कम होना चाहिए क्योंकि पिछला तो ऑब्वियसली देख ही रहा हूं, और रनिंग में भी मैं क्रॉस नहीं हुआ होना चाहिए। अब आप समझ पा रहे हो, जब मैं 20-21 में पहुंचूंगा तो यही कहानी सेम रिपीट होगी। अभी मैं एग्जांपल लेके आ रहा हूँ, 21-22 में, सॉरी 19-20 में कम थी, पहला कंडीशन ओके, पिछला फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ क्रॉस नहीं किया। फिर जो उससे पिछला, जो अब आप देखो, जब मैंने ट्रांजिशन करना था मैं तब भी क्वार्टरली में ही रहा, ठीक है, क्योंकि मेरी टर्नओवर कम थी। 20-21 में, 21-22 में मेरी लेकिन 6 करोड़ तक हो गई, कब तक? अप टू मई, ठीक है, अप टू मई मेरी 6 करोड़ हो गई। तो भैया वो क्वार्टर रनिंग में आ गई, तो यानी कि फर्स्ट क्वार्टर तक तो अलाउ हो गया, लेकिन सक्सीडिंग इमीडिएट क्वार्टर में आपको अलाउ नहीं हो रहा। इज इट क्लियर भैया? राइट, ठीक है, चलो आप थोड़ा सा समझते हैं इसकी एक और इंटीग्रिटी को। सर मैंने आपसे क्या बोला, मैंने कहा अगर आपने पैन वाइज मिलेगा या जीएसटी वाइज मिलेगा ये ऑप्शन, क्या पैन वाइज मिलेगा या जीएसटी वाइज मिलेगा? ध्यान से सुनेंगे सर, आपको ये ऑप्शन मिलेगा जीएसटी वाइज। उसने कहा जीएसटी वाइज आप चूज कर सकते हो इस चीज को, यानी कि इफ आपकी एक स्टेट में 2 रजिस्ट्रेशन है, आप चाहो तो एक रजिस्ट्रेशन के लिए क्यूआरएमपी स्कीम ले सकते हो, एक के लिए मंथली स्कीम में जा सकते हो। तो आज मेरे पास डिफरेंट पैन्स के अंदर, सॉरी डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, एक पैन के अंदर डिफरेंट रजिस्ट्रेशन भी होंगी, तो आई हैव ऑप्शन टू चूज इट जीएसटी वाइज, यानी कि ये मेरे को आज ही पहले ही इन्होंने बता दिया है आपको। इन अदर वर्ड्स, some GSTIN for that PAN can opt for QRMP and remaining may not opt for the scheme. सर ये हमारे लिए अच्छा ऑप्शन है? यस सर, ये अच्छा ऑप्शन है और हमें इसमें बिल्कुल सेटिस्फाइड चलना चाहिए, ठीक है।
अब सुनिए सर ध्यान से। सर इसमें जैसे 3B के तो ऑप्शन हो गए, हाँ जैसे GSTR 1 का अब हमारे अब होता है कि जैसे अगर 1.5 करोड़ से ऊपर, अगर हमारी पिछले बार 1.5 करोड़ से कम थी और हमने क्वार्टरली चूज कर लिया, तो हम हाँ ड्यूरिंग द ईयर चेंज नहीं कर सकते चाहे हमारी टर्नओवर ज्यादा हो जाए। यस सर, वो थोड़ी सी मुश्किल आती है उसमें सर टेक्निकल। जैसे अब 2020 में मान लो मेरी दिसंबर तक टर्नओवर ऑलरेडी हाँ एक्सीड हो गई, 10 करोड़ से ऊपर हो गई, मैं ठीक है, चाहता हूँ जनवरी से मंथली में चला जाऊं, तो कर सकता हूँ? आगे ऑप्शन आएगा उसके अंदर, GSTR 1 के अंदर? बिल्कुल सर, यहाँ पर ऑप्शन आएगा आपके पास अशोक जी। हाँ और जी। अब आप क्रिटिकली देखना, उन्होंने आपके 1 वाले पॉइंट की गुहार को सुन लिया सर। अच्छा। उन्होंने कहा अब आप चाहे 1.5 करोड़ की टर्नओवर से ज्यादा हो या कम हो, सर हमें एक प्रॉब्लम आने लगी थी, आपको याद होगा कि क्रेडिट सामने वाले का 2A में नहीं दिखता था, नहीं दिखता था, क्वार्टरली एक्चुअली वालों का किसी का नहीं दिखता था। नहीं दिखता था। तो दे हैव कम अप विद अ सॉल्यूशन फॉर दैट, दे हैव कम अप फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ क्वार्टरली फाइलिंग GSTR 1 जिसकी होती है, they have come up with a solution of invoice furnishing facility। सर जो लोग क्वार्टरली फाइल करते हैं उनकी टर्नओवर कितनी होती है सर? मैक्सिमम 1.5 करोड़ से नीचे ही 1.5 होती है करोड़ ऑब्वियसली। से। उसने कहा इसको डिवाइड करो 3 से। सर मेरी आदत है, मैं लॉजिक भी देता जाऊंगा सर आपको, जिससे याद हो जाएगा। सर 1.5 करोड़ को आप 3 से डिवाइड करते हैं, कितना आता है? 50 लाख। उसने आपको 50 लाख रुपए की इन ईच मंथ मैक्सिमम प्रोविजनिंग दी है कि आप IFF यानी कि इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी को यूज करो और 13 तारीख तक उसको अपलोड करो, जिससे अशोक जी आप कह रहे थे ना सामने वाले को नहीं दिखता, वो अब दिखाई दिखेगा सर, देगा उसको। अब दिखाई देगा। लेकिन सर टर्नओवर ऑलरेडी मान लो एक क्वार्टर की 4-5 करोड़ है, तो उसमें 50 लाख काम ही नहीं आएगा वैसे ज्यादा। अशोक जी ध्यान से सुनो, यहाँ पर बिल्कुल उसने फंडामेंटली आपको गेम प्ले करने का ऑप्शन नहीं दिया। आपने कहा मेरे 3 महीने होते हैं, मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3, ठीक है। आप मुझे अगर कहते हो कि यार मेरी मंथ 1 में ही 4 करोड़ हो गई थी, तो फिर तो सर आप मंथली के लिए एलिजिबल थे ना। आपने कहा नहीं यार मेरे को क्वार्टरली में रहना है। जनरली क्या होता है, जो नया रजिस्ट्रेशन लेते हैं ना, वहां प्रॉब्लम होती है सर। हाँ, तो आइडियली क्या होता है सर उसमें जहाँ नया आपको, रजिस्ट्रेशन लिया वहां हाँ, क्वार्टरली चूज हो गया, उसके बाद आपको मंथली में कन्वर्ट करना पड़ेगा सर, उसको हाथ के हाथ हाँ जी, मंथली में हाँ। कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड द सिस्टम विल अलाउ फ्रॉम 1 अप्रैल आई बिलीव नाउ। ठीक है सर, यहाँ पर क्रिटिकल क्या है, ध्यान से सुनना सर। ठीक है। 50 लाख रुपए, मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं अशोक जी, अब आप उसको ध्यान से सुनेंगे, उसको ध्यान से सुनना सर। सर मैंने बोला मेरी मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3 तीनों को मिलाकर आपने बोला 1.5 करोड़ क्रॉस नहीं करना चाहिए नव्या। आपने कहा तीनों को मिला ले भाई, 1.5 करोड़ से क्रॉस मत कराइए, तब तक हम क्वार्टरली में रहेंगे, ठीक है, GSTR 1 में। यहाँ इसमें मैंने बोला मैक्सिमम आप 50 लाख डाल सकते हो, इसमें मैक्सिमम 50 लाख डाल सकते हो, इधर तो आपने GSTR 1 फाइल करनी ही है। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, IFF, बाकी IFF, ठीक है। क्रिटिकली ध्यान से सुनिए सर, यहाँ पर मैंने आपसे बोला, आपने कहा नव्या ऐसा तो हो सकता है ना, लेकिन कि मैंने यहाँ से 70 लाख की टर्नओवर करी हो मंथ 1 में और मंथ 2 में 30 लाख की करी हो, ये तो हो सकता है, ठीक है। हाँ जी। सर यहाँ पर आपके पास अब एक नया काम झंझट बढ़ गया। अब आप इस 70 में से चूज करोगे कि मैं मैक्सिमम तो भैया 50 तक ही जा सकता हूं। आप चूज करोगे भाई कौन सी 50 को दिखाना है और कौन से 20 को होल्ड करके, कौन से 20 को होल्ड करके यहां नहीं दिखाओगे, यहां दिखाएंगे सर सीधा GSTR 1 में, लास्ट में जाएगा वो। यस। सीधा लास्ट में जाएगा। मैं आपको इंटीग्रिटी बताना चाह रहा हूं ये चीज की, गेटिंग माय पॉइंट सर। अशोक जी यहाँ पर Yes, अब sir. सबके सब फंस जाएंगे। सर सेकंड मंथ में क्या रिस्ट्रिक्शन लगाई है इन्होंने, उसमें 50 नहीं दिखा सकते हम सर सेकंड आप मंथ 50 में? दिखा सकते हो, लेकिन मेरी डेट ऑफ इनवॉइस तो यहाँ की होगी ना, मंथ मन की, हाँ मंथ, हाँ 1 की होगी, ठीक है। तो क्योंकि वहां इसमें पर 50 लाख पर मंथ है ना, मतलब इसका मतलब सर आप आप मंथ 1 में अगर एक्सेस हो गया है तो 2 में नहीं दिखा सकते हम उसको। ध्यान से सुनना सर, यहाँ पर क्या लिखा है देखो, मैं वही समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर भी कह रहा है फॉर ईच ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड मंथ द टैक्स पेयर शैल हैव अ फैसिलिटी टू फर्निश इन IFF, ठीक है, बिटवीन फर्स्ट डे टिल 13th of the next month, okay, the said detail however not exceeding the value of 50 lakh in each month, उस तक आप 50 लाख तक ही कर सकते हो इन ईच मंथ। उसमें आप क्या लिखा है सर, यहाँ पर आप ये कहना चाहते हो कि यार ये 50 लाख की तो कैपिंग लगाई गई है। हाँ। तो नव्या क्या ये जो 20 लाख का तू एग्जांपल ले रहा है, हाँ। उसको अगले महीने ना दिखा दूं,
हाँ जी, सीधा मंथ 3 में क्यों कह रहे हो सर? मेरा पर्सनल परसेप्शन ये कहता है, सिंस देखो अभी प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं हुआ है, बट मेरा पर्सनल परसेप्शन ये कहता है सर कि डेट ऑफ इनवॉइस तो मंथ 1 की होगी हम्म, और यहाँ डेट ऑफ इनवॉइस मंथ 2 की होगी। हम्म, आइडियली सर, आइडियली ये इसमें नहीं जा पाएगा, क्योंकि उनका एसेंस ये था कि आप 50 लाख से ऊपर मैनिपुलेट ना कर पाओ चीजों को। सर टेक्निकली अगर फ्री फ्लो अलाउ हुआ तो 100% यहाँ होना चाहिए 20 लाख, जैसा आप कह रहे हो। दो मंथ की क्यूमुलेटिव देखेंगे तो हो सकता है 1 करोड़, अगर क्यूमुलेटिव करते तो हो हाँ जाता है ये। सर, क्योंकि वो उसने 50 लाख इन ईच मंथ बोला, यानी कि 50 लाख तक हर महीने का दिखा सकता yes. हूँ। दिस इज माय पर्सनल परसेप्शन, सेइंग अगेन टू व्यूज आर पॉसिबल इन दिस। बिपुल Yes, भी sir. आपको क्या लगता है? सर प्रैक्टिकली मुझे लगता है शायद इंटेंशन ये है कि मैं अगले मंथ में दिखा पाऊंगा। ठीक है, अभी तक तो मेरी ये एंटिसिपेशन है, क्योंकि मैं ऐसा बिलीव करके चल रहा हूँ अगर मेरी इवन प्रीवियस क्वार्टर में भी कोई गलती रह गई है 1 में, बिल्कुल मेरा मेरा कोई ओमिट हो गया वहां पे कोई इनवॉइस करना, तो टेक्निकली आईएफएफ के थ्रू मैं उसको अपलोड कर पाऊंगा, मेरा ये ख्याल है। ठीक है। तो आप ये एक बात समझिए, इसमें बाकी लोगों का क्या व्यू पॉइंट है जरा उस पे भी देख लेते हैं। आप अपना चैट बॉक्स में लिख दीजिए। दीपक जी कह रहे हैं होना चाहिए। सर क्या है, हम एक्चुअली सब ये चाहते हैं कि जीएसटी आसान हो जाए। एक्चुअली बात ये है, हम ये चाहते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाए। और टेक्निकली मुझे ऐसा लगता है सर, आईएफएफ के अंदर इट इज अपलोडिंग नॉट अ अमेंडमेंट। मुझे ये भी लगता है सर। अभी That is fine. टेक्निकली मुझे देखना तभी लग रहा पड़ेगा। है अगर कोई ओमिट हो गया है तो शायद मैं उसको अपलोड कर पाऊंगा, यस, अमेंड नहीं कर पाऊंगा मैं उसको। हाँ। तो इसमें अब ईच मंथ में आप 50 डाल सकते हो, फॉर दैट मंथ नहीं लिखा हुआ जो आप कहना चाह रहे हो, और वो टेक्निकली बिल्कुल ठीक है। तो उस केस की वजह से हम ये कह सकते हैं कि आपको नेक्स्ट मंथ अलाउ हो जाना चाहिए। बट यस, वी हैव टू से, गुप्ता जी भी कह रहे हैं होना चाहिए, नरेंद्र जी भी कह रहे हैं होना चाहिए। सर बाकी वैसे तो लॉ कुछ भी लिखा हो, जीएसटी करना तो पोर्टल ने जो है वही पोर्टल जो फॉलो करना कहेगा वो पड़ेगा, ठीक वो है। ऑप्शन वही हमें यूज करना पड़ेगा। टेक्निकली जीएसटी की खासियत ही यही है कि जीएसटी किताबों में जो हम पढ़ते हैं और वो जो पोर्टल हमें सिखाता है, दैट इज अ वेरी डिफरेंट लॉ। 2 एक्ट है तो सर वो अलग। हाँ, 2 नहीं है सर, वैसे तो मैं कहता हूँ 5 एक्ट है सर। सही बात। जैन साहब, मैं तो हमेशा 5 एक्ट बोलता हूँ। एक जीएसटी किताबों वाला एक्ट है, एक पोर्टल वाला एक्ट है, एक डिपार्टमेंटल एक्ट है, डिपार्टमेंट उसको कैसे समझता है, एक बिजनेसमैन एक्ट है सर, जो आपके पास क्लाइंट आता है ना, वो सर अपना अलग ही तरीके से लॉ पढ़ता है, और एक आपका खुद का चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट है। आप कैसे इसको समझ रहे हैं? पांचों के पांचों अनरिकंसाइल्ड हैं। आज ये ट्रांजैक्शन को आप बिजनेसमैन से पूछोगे, वो कहेगा कुछ और ही बात थी। वो पता है क्या कहेगा, ये भी तो कहीं नहीं लिखा कि क्यूमुलेटिव मंथ को नहीं देख सकता। डिपार्टमेंट कहेगा नहीं जी, हर एक को मंथ को मैं सिंगल ही देखूंगा। अब ये तो सर हमारे को इसकी क्लैरिफिकेशन जब तक क्लियरली प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं होता, तब तक ये चीजें कुछ चीजें सामने नहीं आती है। ठीक है, राइट सर। यस। दीपक सर कह रहे हैं इंटेंट से चलेंगे। बिल्कुल इंटेंट से सर मैं आपके सेटिस्फाइड हूं, बट मैं आपको प्रूडेंट वे भी देके जा रहा हूं इसीलिए। अब सर इसने क्या बोला कि आप आईएफएफ में 50 लाख तक की फिगर्स को डालो, ठीक है, और वो सामने वाले की 2A में दिखता जाएगा। अब यहां से एक नई चीज और नई बला आपके लिए सामने और आ गई, 2B। देखिए सर, इतनी सारी नई चीजें हैं, मुझे ऐसा लगता है कि 1 जनवरी से पहले तो आप 31 दिसंबर को जैसे ही टैक्स ऑडिट और इन सब से बाहर निकलोगे, आपके लिए नया जीएसटी तैयार खड़ा है सर। उस दिन से नया कॉन्सेप्ट आ रहा है आपके लिए, जीएसटीआर सर। अब आप सुनिए, इसका भी मैं स्केलेटल ड्रॉ कर देता हूं, और फिर जब मैं सारा कुछ डिस्कस करूंगा ना, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, नहीं तो सारा जंबल अप हो जाता माइंड में। सर अब 2B का क्या कॉन्सेप्ट है? उसने बोला कि भाई जो जो अपनी ड्यू डेट पे, यानी कि ड्यू डेट क्या है सर, आईएफएफ या जीएसटीआर 1 जिसकी क्वार्टरली है, उसकी ड्यू डेट क्या रखी है इन्होंने? 13th। और जिसकी मंथली है उसकी क्या रखी है सर? 11 तारीख, 11th। ठीक है, उस 11th तारीख तक या 13th तारीख तक, विच एवर इज लेटर, इस केस में जिसकी क्वार्टरली है उसके लिए इसका एक 2B जनरेट होगा। 2B किसको जनरेट होगा? काउंटर पार्टी को। सर इस तारीख को रात को 12 बजे 2B जनरेट हो जाएगा और आपको एक एसएमएस आ जाएगा, भैया आपका 2B जनरेट हो गया है। सर आपने रात को सोचा एक मैसेज अब फिक्स हो गया आना, 2B का मैसेज कि 2B जनरेट हो गया जी। Once your 2B gets generated, sir, once your 2B gets generated, that will serve as a static image
यानी कि रुक गई, एक फोटोग्राफ खींच ली गई कि यही फोटोग्राफ में जो क्रेडिट दिखेगा वही मिलेगा, उससे ज्यादा क्रेडिट नहीं मिलेगा। सर अब यहां पर टेक्निकली क्या बात आई, स्टैटिकनेस में ये नहीं हुआ कि देखकर मैं खुद एक्सेप्ट रिजेक्ट कर रहा हूं सर, यहीं से ऑटो फ्लो होके, अब ध्यान से सुनिए, IFF GSTR1 फ्लो सुनिए सर, यहां अपलोडिंग हुई, विद इन टाइम हुई, 2B में चली गई, 2B से कहां जाएगी सर 3B में। अब ये यहां पर ऑटो फ्लो करेगी 3B में। 2B के अंदर देयर आर 2 टेबल्स, सर हैरान हो जाएंगे आप, एक खुद बना आ रहा है जिसपे ITC अलाउड है, और एक खुद बना आ रहा है जिसमें ITC लिखा है बट नॉट अलाउड है। सर नॉट अलाउड उसने कैसे कर दिया, उसने कहा भाई सितंबर की रिटर्न के बाद किसी ने चढ़ाया है, सर 2B में तो दिख रहा होगा, लेकिन वो नॉट अलाउड के टेबल में चला जाएगा खुद ही। सर अब आप इससे 3B को ऑटोमेटिकली बना लेंगे। आप ध्यान से सुनिए, नया कॉन्सेप्ट और क्या चल रहा है साइड बाय साइड, सर पैरेलली नया कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है, ये हो गई मैं रिसिपिएंट की, आपकी बात कर रहा हूं, आपकी 3B, आपकी खुद की 3B की बात कर रहा हूं। यहां से आपके सप्लायर ने 1 में डाला, ये आपके 2B में दिखने लगा, और आपके 2B से वो आपकी 3B में चला गया। अब आप सुनिए, आपके IFF GSTR1 से डेटा भी ऑटो फ्लो करेगा 3B के अंदर, यानी कि सेल भी ऑटो फ्लो हो गई, इनपुट भी ऑटो फ्लो हो गया, तो बची लायबिलिटी, बस आपके कैश लेजर से ही तो आपको जमा करनी है, बची लायबिलिटी आपको आपके कैश लेजर से जमा करनी है। आपने कहा यार ये सब तो हो ही रहा था, ये सब होते होते साथ में ही उन्होंने एक चीज और इंप्लीमेंट कर दी, ई इनवॉइसिंग। सर ई इनवॉइसिंग में क्या फर्क है, क्या मुझे आप बता सकते हैं अशोक जी, आपके हिसाब से ई इनवॉइसिंग क्या है सर, व्हाट इज यू? सर ई इनवॉइसिंग में जैसे कि जो भी सप्लायर है वो एक अपना सॉफ्टवेयर से जनरेट करेगा ई इनवॉइस, और फिर पोर्टल से उसको एक नंबर आपका लेके उसका, और फिर वो ई इनवॉइसिंग इशू करेगा, तो उसको ऑटोमेटिक उसका GSTR1 उसका उससे प्रिपेयर हो जाएगा जब भी ई इनवॉइसिंग पूरी उसकी मंथ वाइज कंप्लीट होगी तो। ओके मैं आपसे सर ये पूछूं कि क्या ई इनवॉइसिंग मींस जनरेशन ऑफ इनवॉइस ऑन द पोर्टल? नो 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 सर, वहां से तो सर नंबर आपको एक जनरेट होगा बस। So can I say it is merely generation of an invoice reference number on the portal? Yes. However, the invoice is still getting generated by your accounting package and softwares? Yes sir. yes सर वहां से आप टेक्निकली एक इनवॉइस रेफरेंस नंबर ले रहे हो पोर्टल से, जो आप अपने इनवॉइस के ऊपर छापोगे इन द फॉर्म ऑफ अ QR कोड, माइट बी। और आज मैं आपको दिखाऊंगा देयर इज एग्जिस्टिंग वन ऐप, सर ऐप भी है एक, उस ऐप से आप इनवॉइस वेरीफाई कर सकते हो कि क्या वो इनवॉइस ठीक है या नहीं है, क्या वो ई इनवॉइस ठीक है या नहीं है, आप उस ऐप से चेक कर लोगे सर। तो अल्टीमेटली मेरे पास कहानी घूम फिर के क्या आ रही है सर, घूम फिर के आ रही है कि आपके पास ई इनवॉइसिंग विल बी टेक्निकली अ टोटली गेम चेंजर, क्योंकि ई इनवॉइस से आपका क्या बन जाएगा सर, ई इनवॉइस से आपकी अकाउंटिंग, वो सॉरी GSTR1 में वो ऑटो फीड हो जाएगा, और ऑटो फीड होते ही सर वहां से वो कहाँ चला जाएगा, आप खुद ही आपकी 3B में वो फ्लो कर जाएगा। चलिए सर अभी देखेंगे इसको। सर ई इनवॉइसिंग में ई वे बिल भी नहीं चाहिए ना फिर तो? सर मैं आपको बता देता हूँ, दे हैव अ थॉट प्रोसेस ऑफ रिमूवल और एबॉलिशिंग द ई वे बिल, बट फॉर नाउ क्या हो रहा है सर, आप ध्यान से सुनना सर, एक ना चेंज है सर, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैं पहले ही सर्च करके बैठा था, मुझे पता था सवाल आएगा। देखो 7 दिसंबर से, देखो सर मैं अभी खाली चीजें बीच में से पिक एंड चूज करके आपको सिलेक्ट करके बता रहा हूँ, हाउएवर अभी मैं सारा कंटेंट और कवर करूंगा। 7 दिसंबर 2020 से सर अजय जी उन्होंने चेंज कर दिया, उन्होंने कहा टैक्स पेयर हु आर रिक्वायर्ड टू इशू IRN कैन नॉट जनरेट ई-वे बिल इफ IRN इज नॉट जनरेटेड। यानी कि 7 दिसंबर के बाद से अगर आपने इनवॉइस रेफरेंस नंबर बनाने के लिए आप एप्लीकेबल थे, एप्लीकेबल कब थे सर, आप एप्लीकेबल थे अगर आपकी टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर की थी। Sir, even on the portal, you have a functionality to check that whether your e-way bill is applicable, IRN is applicable or not.
सर वहां से अगर आपको IRN जनरेट करना था और आपने नहीं किया तो आपका ई-वे बिल भी नहीं हो पाएगा। ई-वे बिल विच विल नॉट कंटेन, ध्यान से देखिए, ई-वे बिल विल कंटेन द QR कोड ऑफ IRN। समझ रहे हैं अजय जी? फिलहाल के लिए तो मेरे लिए ई इनवॉइस और ई-वे बिल दोनों एप्लीकेबल कर दिए उन्होंने। टेक्निकली होना क्या है सर, दे हैव टू गो अवे विद द ई-वे बिल, दे हैव टू गो अवे विद द ई-वे बिल एंड द कॉन्सेप्ट विल बी सिंपली, अभी क्या है, आपका ई इनवॉइस आप जनरेट करो और आपका सर उससे ई-वे बिल भी बन जाएगा पार्ट ए। अभी इनका थॉट प्रोसेस ये है सर, इससे आपकी GSTR 1 भी बन जाएगी। अब सर मुझे लोगों ने बोला कि सर ई इनवॉइस का फायदा क्या हुआ? सर ई इनवॉइस से फायदा क्या हुआ लाने से? गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या था ई इनवॉइस? सर अजय जी आपको क्या लगता है कि ई इनवॉइस आने से क्या प्लानिंग रुक गई लोगों की? सर सारी प्लानिंग बैक डेटेड और ये सब वो खत्म हो जाएगा। सर मैं यही कहता हूँ, होता क्या था, जैसे मंथ क्लोज हुआ, हाँ। ये आपको एक फ्रेम मिलता था 1 तारीख से 20 तारीख तक का रिटर्न भरने का। ठीक है, आप यहाँ जाके इसकी 3B भरते थे। यहाँ पर आपको लगता था यार नहीं मेरी लायबिलिटी ना बहुत ज्यादा आ रही है पिछले महीनों की, तो आप, सर आप नहीं मतलब कोई भी असेसी कहीं से कुछ अरेंजमेंट कर लेता था और बैक मंथ में ही इनवॉइसेस ले लेते थे। सर अब विद इन अ मंथ भी मैनिपुलेशन पॉसिबल नहीं, मैं आपसे यही कह रहा हूं, अब विद इन अ मंथ भी मैनिपुलेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मान के चलिए अगर मैं कहता हूं आज 27 नवंबर है और आज एक ई-वे बिल जनरेट होना था, 27 नवंबर को आज एक ई-वे बिल जनरेट होना था, और सॉरी ई इनवॉइस जनरेट होना था, इनवॉइस जनरेट हुआ, सर आपने इसका IRN ले लिया आज, अब सारी सीक्वेंस चलती गई सर, सीक्वेंस मंथ क्लोज हो गया। अब आप मुझे कहो कि आज नव्या मेरे को 26 नवंबर का कोई इनवॉइस दे दे, सर मैं नहीं दे पाऊंगा ना, या तो मेरे को दिखाना पड़ेगा कि मैंने आज इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट किया, अगर आज किया तो फिर ई-वे बिल कब बना? सर टेक्निकली रियल टाइम बेसिस की तरफ जाने की कोशिश हो रही है सर। यहां से फिर आपको आज भी सर मैंने 1-2 जगह ट्राई किया, जब आप यहां से GSTR 1 के अंदर एक इनवॉइस को सेव कर देते हो तब भी वो सामने वाले को दिखने लग जाता है सर। सर टेक्निकली वी आर मूविंग टुवर्ड्स रियल टाइम बेसिस नाउ। वंस आई से वी आर मूविंग टुवर्ड्स रियल टाइम, आगे जाके क्या होगा, आपने जहां अपना इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट किया, ये आपकी GSTR 1 में चला गया, जैसे ही 1 में चला गया 1 से वो 3B में लायबिलिटी चली गई, इधर आपके सामने वाले से 2B से जो क्रेडिट आ रहा था वो आपका 3B में नॉक ऑफ हुआ और आपका सिर्फ मात्र कैश लेजर से लायबिलिटी पता लग गई कितनी। उसमें भी गवर्नमेंट ने रेवेन्यू सिक्योर करते हुए बोला कि भाई अगर कोई 3B अपनी क्वार्टरली भरता है या मंथली भरता है वो स्कीम चूज कर ले, अगर वो क्वार्टरली भरता है तो उसको 35% एडहॉक बेसिस पे टैक्स जमा करो, नहीं तो आप एक्चुअल बेसिस पे जमा करो। सो टेक्निकली वी आर इनटू अ वेरी न्यू फ्लो ऑफ रिटर्न्स नाउ। सर अब हम बिल्कुल नए एरा में जाने वाले हैं 1 जनवरी 2021 से। एक सवाल इसमें क्वेश्चन है। हाँ जी, एक सवाल ये था कि M1 M1 में लेट्स सपोज मैंने एडहॉक बेसिस पे 35% पे कर दिया, ठीक है, अब M2 में क्या मैं एक्चुअल बेसिस पे पे कर सकता हूँ? उसमें कोई बार है? बिल्कुल कर सकते उसमें कोई बार तो नहीं है? कोई बार नहीं। आप अगर 1 महीना एडहॉक 1 महीना एक्चुअल बेसिस, आपकी चॉइस है, आप कर सकते हो। राइट। सबसे बड़ी बात क्या है भैया, सबसे बड़ी बात मैं आपको आज समझाऊं, ध्यान से सुनेंगे। जहां आप क्वार्टरली वाले सिस्टम में गए, जहां आप क्वार्टरली वाले सिस्टम में चले गए, वहां पर आपको M1 M2 M3 आएगा, इसमें तो आपकी 3B जानी ही है। यहां पर मैंने आपसे क्या बोला, EMT 06 भर देना। सबसे बड़ी बात सुनना, आप क्वार्टरली इसमें क्या कब तक भरना होता है? 25th तक। लेकिन इसमें सबसे टेक्निकल बात क्या थी, आपने बोला कि यहां मेरी 40,000 रुपए की लायबिलिटी निकलती है लेट से, जब भैया आप एक्चुअल में कैलकुलेशन करने लगे ना मंथ 3 पे जाकर, अभी तो आपने एडहॉक बेसिस पे लेट से 35,000 जमा कर दिया, जो आपकी 35% की लायबिलिटी आ रही थी। ठीक है, आपने 40,000 रुपए जब एक्चुअल में 3B बनाने लगे
तो आपको पता चला यार मंथ 1 में तो 40,000 लाइबिलिटी निकलती थी और मंथ 2 में 45,000 की लाइबिलिटी निकलती थी, और एडहॉक में तो मैंने यार सिर्फ 35 ही जमा कराया है। क्या आपका कोई इंटरेस्ट लगेगा? नहीं लगेगा सर। और यहाँ पर मंथ 3 में लेट से मेरी अगेन 40,000 की लाइबिलिटी निकलती है, क्या कोई इंटरेस्ट लगेगा? द ब्यूटी ऑफ दिस स्कीम इज आपका कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, सब्जेक्ट टू आप मंथ 3 में जब 3 भी भर रहे हो तब अपनी सारी लाइबिलिटीज M1, M2, M3 की जो बैलेंस है वो भी डिस्चार्ज करते। सर आज ना गेम चेंजर हो गया। हाँ जी, हाँ जी सर। सर नव्या जी, एक मेरी रिजर्वेशन ये लग रही है कि जो आपने अगर ये फिक्स सम वाला यूज कर लिया ना मेथड, हाँ तो मंथ 2 में भी आपको वो यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये विद इन क्वार्टर आपको सेम सिस्टम यूज करना है, ना कि विद इन क्वार्टर आप चेंज कर दो। दिस इज माई थॉट। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अभी चेक कर लेते हैं सर। हाँ। देखो क्या है सर, उन्होंने कहीं बारिंग नहीं दी उसकी, मैं आपको आज बताऊं। अब हो क्या रहा है, मैं अभी खोल लेता हूँ स्कीम, ध्यान से देखेंगे। ये रही, देखो सर ये फिक्स सम में क्या बोलता है, ये देखिए। ये कह रहा है फैसिलिटी बीइंग मेड अवेलेबल ऑन द पोर्टल फॉर जनरेटिंग अ प्रीफिल्ड चालान, प्रीफिल्ड कर दिया एडहॉक in the form PMT06 for an amount equal to 35% of the tax paid in the cash। सर अभी भी ना लोग इसको नहीं देख रहे, और अभी हम टेक्निकली इसमें गए भी नहीं है कोई लोग इस डिस्कशन में। आप जितने भी कंसल्टेंट से पूछोगे वो इस डिस्कशन में नहीं जा रहे कि कैश की बात हो रही है कि कितना कैश में जमा हुआ है, उतने का ही प्रीफिल्ड चलान आना चाहिए। आईटीसी की बात नहीं की गई यहाँ। सर आप लाइबिलिटी दो तरीके से जमा करते हो, ठीक है। अभी मैंने इसको नहीं पिक किया था डिस्कशन में। In the preceding quarter where the return was furnished quarterly, और if अगर मंथली हुई थी तो आपको मंथली वाले को देखना है। एग्जाम्पल क्या था, ये वाला। आपने कहा यार मैं मार्च 21 का क्वार्टर एंड हुआ, जनवरी से मार्च 21, ठीक है, जो पहला वाला फर्स्ट क्वार्टर आया नेक्स्ट ईयर में, मतलब जो नया नया साल चढ़ेगा न्यू ईयर, उसमें आपने अमाउंट इन कैश जमा किया कितना, 112 लेट से। सर टैक्स एक्चुअली में आपको कैश में कितना जमा करना होगा अगली बार? सर बहुत खतरनाक स्कीम है ये। क्यों? क्योंकि जब आप कैश में एक्चुअल में जमा करोगे तो हो सकता है आप 35,000 क्या इस 1 लाख का 35%, फिर ये नेक्स्ट 1 लाख का 35%, इस 2 लाख का 35% आप कैश में जमा कर दो, ठीक है। यही स्कीम अगर मेरी मंथली होती सर, तो उसने बोला अगर आपने पिछले साल मंथली रिटर्न में भरा है, क्यों? क्योंकि सर ऐसा हो सकता है मैं ट्रांजिशन से पहले अभी चेक कर लूं कि मैं मंथली ले गया, ऑटो डीम्ड में चला गया गलती से, सर वहां पर क्या होगा, फिर आपको 100% ऑफ द लास्ट मंथ करना है, ठीक है। हाउएवर सर एक सेल्फ असेसमेंट मेथड भी था, जहां पर आप अपनी मर्जी से आप पूरा सेल्फ असेस करो और कंसीडरिंग टैक्स लायबिलिटी इनवर्ड एंड आउटवर्ड एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट PMT6 में जमा कर दो, ठीक है। सर यहाँ पर अजय जी कहीं पर एज सच रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, नहीं है ना सर? ओके, नहीं है, एज सच रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक सवाल और था। हाँ, क्योंकि अभी हम इंटरेस्ट की बात कर रहे थे इसलिए मैंने कहा अभी पूछ लूं आपसे। यस सर। सपोज करिए जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर की मेरी कोई लायबिलिटी थी जो पे ऑफ होनी रह गई, अब मैं आ गया हूँ अप्रैल क्वार्टर में। मैं एक बार लिख लेता हूँ भैया, जनवरी से पर मार्च का जो मेरा क्वार्टर था उसमें मेरी कोई लायबिलिटी थी लेट से 10,000 रुपए की, 10,000 रुपए की, जो मैं पे करनी मेरे से रह गई। बिल्कुल भैया, ये रह कैसे सकती है? नहीं 3B कैसे फाइल हो गई? नहीं 3B मैंने फाइल करी, बट 10,000 का शॉर्टफॉल के थ्रू मेरी फाइल हुई है। ठीक है, आपने कहा मैं 10,000 की लायबिलिटी रिपोर्ट करना ही भूल गया। रिपोर्ट करना भूल गया, मेरी 1 में भी रह गई, मेरी 3B में भी रह गई। ओके, दोनों में रह गई। दोनों में रह गई। अब सवाल ये आता है कि अभी तक क्या होता था, मैंने उसको लायबिलिटी देखा अप्रैल के अंदर, और 1 महीने का इंटरेस्ट, मार्च की सपोजिटली वो लायबिलिटी थी, 1 महीने का इंटरेस्ट पे करते थे और हम खत्म कर देते थे, ठीक है। बीइंग अब ये PMT06 आ गया, एडहॉक में जाएंगे तो बात ही अलग हो जाती है। तब तो मुझे लगता है कि क्वार्टर, मेरा पूरा क्वार्टर का इंटरेस्ट मुझे देना पड़ जाएगा। बिल्कुल। अगर मैं एक्चुअल बेसिस पे जाता हूँ और एक्चुअल बेसिस पे वो लायबिलिटी मार्च की पे कर देता हूँ, क्या मेरा इंटरेस्ट 1 महीने का ही रहेगा या तब भी मुझे रिटर्न? 100% 1 महीने का रहेगा, बिल्कुल 1 महीने का रहेगा भैया, पक्का। क्योंकि हम इसको कंसीडर कर रहे हैं कि पेमेंट है। अभी मैं एक लाइन दिखा देता हूँ आपको। मैं ना जब उसको पढ़ा ना स्कीम में, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि नाउ दे हैव एक्सेप्टेड वन फैक्ट दैट नीडेड क्लैरिफिकेशन फ्रॉम डे 1।
सर उन्होंने क्या क्लैरिफाई किया, ध्यान से देखना, मैं अभी वो लाइन निकाल लेता हूँ, एक सेकेंड। उन्होंने बोला कि भाई आपका जो पैसा जमा हुआ है ना कैश लेजर में, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, डिपॉजिट इन कैश। मैं अभी भी क्या बोल रहा हूँ, डिपॉजिट कर दो PMT 6 में, कोई 3B तो जमा नहीं हो रही ना, राइट। उसने बोला डिपॉजिट कर देना कैश में, ठीक है। सर ये जब डिपॉजिट की बात होती है, दे आर ट्रीटिंग डिपॉजिट आल्सो एज अ पेमेंट ऑफ टैक्स। राइट। आज की जब नई स्कीम आई ना, तो दे हैव स्टार्टेड कंसीडरिंग द डिपॉजिट ऑफ टैक्स इक्विवेलेंट टू पेमेंट ऑफ टैक्स। हेंस विपुल भैया वहां पर जब उसने इंटरेस्ट की बात करी थी, ये देखो, जब उसने इंटरेस्ट की बात करी तो उसने क्या बोला, ध्यान से देखना, उसने कहा द टैक्स लायबिलिटी नेट ऑफ अवेलेबल ऑफ क्रेडिट एंड रिसीव्ड, अगर निकला हायर अमाउंट पेड इन चलान्स, देन नो इंटरेस्ट शैल बी पेएबल, अगर आपने एंटायर लायबिलिटी को क्वार्टर एंड में जमा कर दिया। यानी कि चलान वाली लायबिलिटीज को, PMT 6 को भी तो वो कंसीडर कर रहा है आज आपका डिपॉजिट। ठीक। सो दिस इज अ मच, मतलब मैं कहूंगा सर ये डे 1 से जरूरी था। लोगों के माइंड में कंफ्यूजन रहती थी ना कि यार मैंने कैश लेजर में डिपॉजिट कर दिया है, क्या मेरी लायबिलिटी डिस्चार्ज हो गई? नहीं होती थी, हम पहले मानते थे, क्यों? क्योंकि वहां लिखा होता था इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर डेबिट होना चाहिए। लेकिन आज उन्होंने इस इंटरेस्ट की चीज को निकालने के लिए उन्होंने बिल्कुल ब्यूटीफुली क्लैरिफाई कर दिया कि अगर आपने अमाउंट पेड इन चलान और ITC, यानी कि 10 लाख की लायबिलिटी निकलती है और 10 लाख को माइनस करो, इनपुट टैक्स बनता है 7 लाख का, और आपने कैश लेजर में जमा कर रखा है 2 लाख, तो यानी कि अभी भी 1 लाख अगर पेबल है और आप इसको मंथ 3 की लायबिलिटी के साथ डिपॉजिट कर देते हो, हेंस नो इंटरेस्ट इज पेबल। राइट। So particularly this is a much needed welcoming change that we are looking forward eagerly from January onwards. सर जैसे PMT, हाँ जी सर। सर जैसे PMT 06 आपने बताया कि 35% में तो वो प्री फिल्ड आएगा, लेकिन जो हम एक्चुअल में करेंगे तो वहां फिर हमें इनपुट आउटपुट सब कैलकुलेट करके डालना पड़ेगा उसके अंदर, PMT 06 के अंदर। यस सर, या तो आप फिक्स सम मेथड ले लो। सर मैं आपसे फिर से वही बोल रहा हूँ जो कि अजय जी ने भी क्वेश्चन पूछा, क्या मेरे पास ऑप्शन है फ्री चेंज करने का? आप 1 मंथ करके देखो, अगले महीने जैसा आपको ठीक लग रहा है वैसा करो। मेरे हिसाब से PMT 06 में इनपुट आउटपुट लायबिलिटीज नहीं डालनी, वहां पे तो आप नेट लायबिलिटी डाल दोगे कि आपको इतना कैश में पे करने की जरूरत है। yes, आपको ये सब क्या डालनी करना है, देखो पड़ेगी। आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्फ असेसमेंट मेथड से आपको टैक्स लायबिलिटी इनवर्ड आउटवर्ड सारा कंसीडर करना होगा। कंसीडर करके वर्किंग बना लेना, ठीक है, और उसको फिर जमा कर देना। सर पता है क्या होगा, सर मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ अशोक जी, जहां आपने 35% वहां पे मेरे हिसाब से वहां ऑप्शन आएगा सर, आपने फिक्स सम पे क्लिक करा है या एक्चुअल पे क्लिक किया है। अगर आप एक्चुअल पे क्लिक करोगे तो मेरे हिसाब से फिर वो 3rd मंथ की वेट करेगा और आपकी एक्चुअल वर्किंग्स की वेट करेगा, ठीक है सर। तो आप मंथ 1 मंथ 2 में डिफरेंट भी ले सकते हो। अब आते हैं लेट फी के ऊपर। सर लेट फी विल बी एप्लीकेबल फॉर डिले इन फर्निशिंग द रिटर्न्स या डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई एज पर द स्कीम। द रिक्वायरमेंट टू फर्निश द रिटर्न इज क्वार्टरली, hence the late fee would be applicable for the delay in furnishing of the said quarterly return. It is clarified, ध्यान से सुनिए, that no late fee is applicable for delay in payment of tax in first 2 months of the quarter. सर लेट फी नहीं लग रही क्योंकि रिटर्न थोड़ा ना है वो जो आप PMT 6 जमा कर रहे हैं, इट इज नॉट अ रिटर्न, इसके ऊपर लेट फी नहीं है। हाउएवर क्या इंटरेस्ट होगा या नहीं होगा? इंटरेस्ट लगेगा इंटरेस्ट सर, होना चाहिए सर, 25 तारीख के बाद करोगे तो इंटरेस्ट लगेगा सर। बिल्कुल इंटरेस्ट होना चाहिए सर। और गवर्नमेंट ने इंपॉर्टेंट एडवाइजरी निकाल दी वाइड दिस नोटिफिकेशन कि भैया टैक्स पेयर्स आर एडवाइज टू रेफर टू बी फॉर अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट इन 3V। हाउएवर 2A हो जाएगा किस पे? रियल टाइम बेसिस पे। सर मुझे बताइए अशोक जी, अजय जी, क्या ये स्कीम में समझा पाया आपको? सर क्लियर है स्कीम तो। सर ऐसा ना हो कि क्रिस्टल क्लियर हो जाए। सर और एक नव्या जी एक क्वेरी माइंड में और आ रही है जी कि सर, जो हमें कैश पेमेंट करनी है PMT 06 में, जिस मंथ में करनी थी, मान लीजिए उस मंथ में कोई हमारा TDS या TCS और आ गया क्रेडिट कैश लेजर में, तो क्या वो कंसीडर हम करेंगे या नहीं करेंगे? अब क्योंकि अजय जी ध्यान से सुनना, जब आप ये TDS TCS की बात कर रहे हो, हाँ जी, सर मैंने आपसे, अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, देखना सर कितना ब्यूटीफुल मैकेनिज्म, आपके मन में जितने क्वेश्चन आएंगे ना सारे आपको मिलेंगे यहाँ पे। अब क्या है, ध्यान से देखना सर,
एक ना कॉन्सेप्ट आया 2B का, ठीक है, 2B का कॉन्सेप्ट ले आए ये लोग। सर 2B के अंदर आपको सारी डिटेलें मिलेंगी सर। अब नया 2A और 2B देखो, ये देखो सर, अब 2B और 2A क्या कॉन्सेप्ट हो गया, एक नया 2A आया है सर। 2A कब से एप्लीकेबल हुआ वाला सर? नया 2A एप्लीकेबल हुआ है आपका 15 अक्टूबर 2020 से, अजय जी, ठीक है, वाइड नोटिफिकेशन नंबर 79 2020। इसमें आप देखना सर 2A के अंदर ही TDS TCS की डिटेलें आने लग गई हैं रिसीव्ड। अब आपको ये न्यू 2A के अंदर जब दिखने लगे, और एक्चुअल में दिख रहा है सर अब ये, तो सर आपका 2A किस दिन बन रहा है? 2A तो रियल टाइम बेसिस पे बन रहा है ना अजय सर, अब उन्होंने बोला है। तो आप यहां से देखकर उसको यूज कर सकते हो सर पहले, लेकिन TDS का फॉर्मेट और प्रोसेस तो रेफर करना पड़ेगा ना। क्या पहले मुझे उसका एक्सेप्ट करना होता है, एक्सेप्ट करते ही वो उसकी रिटर्न फाइल करनी होती है, नीचे जाके जैसे ही वो फाइल होती है वो आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आ जाता है। जैसे ही आ गया, इट इज कंसीडर्ड एज दैट एज गुड एज योर डिपॉजिट सर, ठीक है सर एक 2B से रिलेटेड क्वेश्चन था। जी सर। जैसे सर आपने कहा कि 2B जो है हमारा 13 तारीख को जो है 13 तारीख को स्टैटिक हो जाएगा, जो 11 को है वो 11 को स्टैटिक हो जाएगा। यस सर। सर अब मैं मान लो मंथली रिटर्न फाइलर हूँ और जिससे मैंने सप्लाई ली वो क्वार्टरली रिटर्न फाइलर है, लेकिन उसने मंथली IFF में भी नहीं डाला, उसने फर्स्ट मंथ में भी नहीं डाला, सेकंड मंथ में भी नहीं डाला। सर मैं आपको बिल्कुल एक चीज यहाँ ऐड कर देता हूँ अशोक सर, IFF लिख भी लेंगे सर, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन बोल दिया तो मैं भूल ना जाऊं, IFS इज ऑप्शनल सर, मैंडेटरी नहीं है। जिसकी क्वार्टरली रिटर्न है ना वो मैंडेटरी नहीं है, IFF को छोड़ भी सकता है, क्या पता वो ना भरे। सर उसने नहीं भरा, तो अब सर मेरा क्या होगा कि मैं क्या क्वार्टरली का 2B के हिसाब से देखूंगा जो 110% मुझे जो अभी देखना होता है आज की डेट में कि भाई वो ड्यू डेट जो फाइलिंग में क्या हुआ उसका। बिल्कुल सर, आपको वैसे ही देखना होगा, आपको क्रेडिट भी वैसे ही मिलेगा। अगर वो नहीं दिख रहा 2B में तो नहीं मिलेगा सर, नहीं मिलेगा सर, नहीं मिलेगा सर, अब आपका क्रेडिट अटक जाएगा सर। तो ये ITC एडिटेबल आएगा या 2B से ऑटो पॉपुलेट होके वो मैं एडिट भी नहीं कर पाऊंगा? एडिटेबल आएगा भैया, जैसे आज GSTR 9 एडिटेबल होती है। आप क्या करते हो, आप 10,000 रुपए से या 10% से ज्यादा वेरिएशन करते हो तो वो फिगर क्या हो जाती है, रेड हो जाएगा वो। बस वो आपको ये बताएगा कि जी चेक कर लो ये फिगर, रोकेगा आपको कहीं नहीं। आप उसको चेंज करो, वो रोकेगा नहीं, बट अल्टीमेटली क्या होगा, वो आपके लिए कॉज ऑफ कंसर्न होगा कि यार ये लाल हो गई है, तो शायद ये एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता है स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न के लिए, ठीक है राइट। अभी तक मैंने QRMP पूरी डिस्कस करा आपसे डिटेल में वैसे, हाउएवर अब मैं 2B के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूं सर साथ में। सर 2B को आप देख लीजिए, 2B एप्लीकेबल हो चुका है आपके लिए कब से, 1 जनवरी 2020 से। Once I say the 2B is applicable from 1st of January 2020, तो मेरे लिए सबसे बड़ा यहाँ पर कॉज क्या हुआ कि 2B है क्या, एक्चुअल में दिखता कैसा है। सर 2B के लिए मैं आपसे बोलूंगा सिर्फ पार्ट 3 और पार्ट 4 को इंपॉर्टेंटली देख लेंगे। पार्ट 3 और पार्ट 4 मेरे से बात करता है कि क्या ITC अवेलेबल है और क्या ITC अवेलेबल नहीं है, ठीक है, क्या ITC अवेलेबल है और क्या ITC अवेलेबल नहीं है। अब आप एक चीज और देखिए, मैं आपको आगे जाके 2B दिखाऊंगा भी कि कैसे निकाला है हमने पोर्टल से। पर यहाँ पर अभी किसी ने एक क्वेश्चन भी पूछा है शायद कि क्या 10% का रूल वेव ऑफ हो जाएगा। सर 36(4) हट जाएगा बिल्कुल बाद में। सर ये देखिए पार्ट A जो मैंने बोला, टेबल 3 और टेबल 4 की बात कर रहा हूं मैं। टेबल 3 में क्या क्या आ रहा है सर, ये ड्रैग आप इसमें वहां पे ड्रिल डाउन कर सकते हो पोर्टल के ऊपर। पोर्टल पे 2B आपको ऐसा दिखेगा सर, ध्यान से देखना, ये रहा सर पोर्टल पे ऑटो ड्राफ्टेड 2B। आपको नॉर्मल 2B ऐसा सा दिखने लग जाएगा सर, ठीक है, और आप इस 2B के अंदर से हर एक ड्रैग डाउन को आप यहाँ पर ड्रिल डाउन वाले बटन को क्लिक करके इस टेबल की डेप्थ में जा सकते हो, डिटेल्स देख सकते हैं सारे। सर आप अशोक जी हैरान हो जाओगे, आप क्या क्या देख सकते हो। आप एक्सपैंड करके आप इसके अंदर B2B इनवॉइस को क्लिक करोगे, ये जैसे आपने पहला ड्रैग डाउन किया तो यहाँ खुल गए सारे। जैसे आपने B2B इनवॉइसेस पे क्लिक किया, ये सर सारे B2B इनवॉइसेस आ गए, ये सप्लायर वाइज डिटेल आ गई। अब आप सप्लायर के साथ साथ जाकर डॉक्यूमेंट वाइज डिटेल भी देख सकते हो सर, ये देखो ये डॉक्यूमेंट डिटेल आ गई।
सर अभी तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको सारी चीजें दिख रही हैं इसके अंदर। इस पार्टी ने क्या क्रेडिट नोट दिए, कब इनवॉइस दिए, क्या दिया, आप समझ रहे हैं सर, हाँ जी अलोंग विद सारी डिटेल। ओरिजिनल इनवॉइस नंबर। ठीक है, अब क्रिटिकली सर ध्यान से देखिए, आपको मैं रिलेट कर देता हूं जल्दी से कि कैसे टेबल्स रिलेट हो रहे हैं इसमें। टेबल के अंदर मैंने आपसे बोला इसके कुछ टेबल्स हैं, दैट इज सर ये देखिए ये प्रोसीजरल एस्पेक्ट होता है। हाउएवर मैं आपकी नॉलेज के लिए आपको शेयर भी करूंगा, बट आप टेक्निकली समझिए हो क्या रहा है। टेक्निकली मुझे ये समझना है कि इसके अंदर अगर टेबल में पॉजिटिव फिगर आ रही होगी, प्लीज सर समझिए फंडामेंटल, टू बी के इस फिगर्स के अंदर लेट अस से ऑल अदर आईटीसी सप्लाईज रिसीव्ड फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन में अगर तो पॉजिटिव फिगर आ रही होगी तो दैट विल बी आईटीसी अलाउड। सर रिक्वेस्ट करो ध्यान से सुनिए, अगर ये नेगेटिव आ रही होगी तो ये आपका आईटीसी रिवर्सल में जुड़ जाएगा 3B के अंदर। अगर यहां पॉजिटिव फिगर है तो ये आईटीसी अलाउड है, अगर नेगेटिव फिगर है तो ये आईटीसी रिवर्सल में चला जाएगा। सबसे बड़ी खतरनाक बात यही है। क्या इनवर्ट सप्लाई रिसीव फ्रॉम रिवर्स चार्ज नेगेटिव हो सकती है? इट कैन नॉट बी नेगेटिव सर। नेगेटिव। इसका क्रेडिट नोट थोड़ा ना आता है कहीं से, दिख रहा होगा सर। ये देखो, अब आप जब 3B का फॉर्मेट देखते हो, ये होती है एक्चुअल आपकी 3B। देखो 3B में इंपोर्ट ऑफ गुड्स उसने कहा 2B से आ जाएगी फिगर उठ के। ठीक है, आईटीसी जो इंपोर्ट ऑफ गुड्स हैं, क्रिटिकली सुनिए, आइस गेट पोर्टल से पिक कर रहा है सर अब। ठीक है, क्या इंपोर्ट ऑफ सर्विस आ पाएगा? नहीं, ये नहीं आज आएगा भी सर। आप मैनुअल डालोगे। समझ रहे हैं विपुल भी? आप कह रहे थे कि ये चीज कहां से आएंगी। ये सारी चीजें ऐसे दिख रही हैं कि अब आपको कुछ चीजें खुद लिखनी है और कुछ चीजें आपकी ऑटो पॉपुलेटेड आएंगी। मैनुअल भी भरना है, ऐसा नहीं है आज भी मैनुअल छूट गया है। इनवर्ट सप्लाई अभी मैंने आपको बोला रिवर्स चार्ज, ये 2B से आएगी सर, बट सुनिए सोर्स ऑफ ऑटो पॉपुलेशन में, ठीक है, आईएसडी का क्रेडिट भी आपका 2B से ही आएगा। आपने कहा यार ये वाला जो है ऑल अदर आईटीसी, सर ये अभी हमने पार्ट ए रो 1 डिस्कस करी थी, ये रही पार्ट ए रो 1, यहां से आ रहा है सारा फिगर्स। सर इफ दीज फिगर्स आर पॉजिटिव, यहां पे आपको यहां पर आईटीसी मिल जाएगा। इफ दिस इज नेगेटिव तो ये सारी की सारी यहां चली जाएंगी रिवर्सल में। सर नेगेटिव का मतलब क्रेडिट नोट से है या कोई और भी नेगेटिव हो सकती है इसमें? सर क्रेडिट नोट से भी हो सकता है, सामने वाले ने कोई रिवर्सल कर दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है सर कि आपने कुछ इनवॉइस लिए, लेट से 10 लाख रुपए का टैक्स है उनपे और टोटल क्रेडिट नोट्स 12 लाख के हैं, तो 2 लाख नेगेटिव आ जाएगा उसमें खुद ही। वो फिर रिवर्सल में कर देगा उसको, क्योंकि रिवर्सल को अल्टीमेटली उसको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करना है घुमा के। समझ गए सर? अभी भी ध्यान से सुनना, इन एलिजिबल आईटीसी, ये सबसे खतरनाक बात है सर, ये टेबल 4 में है, ये देखना सर, ये रहा टेबल 4 में इन एलिजिबल आईटीसी। सर इसमें कौन से हैं? 16/4 प्लेस ऑफ सप्लाई। ये पहली बार ऐसा होगा अशोक जी, अजय जी, जहां प्लेस ऑफ सप्लाई पे इन एलिजिबल क्रेडिट दिख रहा होगा। आज तक हमने इसको सीरियसली नहीं लिया सर डे 1 से। अगर प्लेस ऑफ सप्लाई डिफरेंट स्टेट में हुआ और आप एज ए रिसिपिएंट डिफरेंट स्टेट में, आपको क्रेडिट नहीं मिल पाएगा, वो इनएलिजिबल में शो होना हो जाएगा शुरू। समझ रहे हैं सर? हाँ जी। 16/4 यानी कि सितंबर की रिटर्न के बाद अगले साल आपका क्रेडिट दिखाया गया है, वो भी नहीं आएगा। वो भी नहीं आएगा सर। वो यहां दिखेगा, आएगा तो सही सर, इनएलिजिबल में चला जाएगा वो। और वो यहाँ इनएलिजिबल से कहां चला जाएगा? खुद ही यहाँ दिखेगा। खुद ही यहाँ सर कभी इमेजिन किया था अशोक जी हम इस टाइम पर भी पहुंच पाएंगे जीएसटी में? सर देखिए अब धीरे धीरे चीजें चेंज हो रही हैं जीएसटी के अंदर। ठीक है, ये है फंडामेंटल सर 2B का। यहां पर सुनिए 2B के अंदर क्या लिखा है सर। 2B इज अ वेरी ब्यूटीफुल फॉर्म सर। क्या आप लोगों ने पोर्टल पे जाके टेस्ट किया इसको? इन माय रिक्वेस्ट सर, आप प्लीज 2B को जाकर चेक करेंगे एक बार, है पोर्टल पे अवेलेबल। ये क्या करता है सर, देखो
ये पोर्टल के ऊपर आप लेस देन 1000 इनवॉइसेस तक देख सकते हो और इसके साथ साथ आप इसको जेसन या एक्सेल में भी डाउनलोड कर सकते हो। सर आप ध्यान से सुनना, ये क्या कह रहा है, इट विल कंटेन द समरी ऑफ ऑल टेबल्स एंड डॉक्यूमेंट्स जब आप डाउनलोड करोगे, और आप साथ साथ सर क्या कर सकते हो, यू कैन व्यू द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ GSTR1 ऑफ द सप्लायर एज वेल। साथ साथ आप कट ऑफ डेट्स भी देख सकते हो कि 2B में कहां से बनी वो, समझ रहे हो सर। 2B के अंदर इटसेल्फ मुझे ये पता है सर, 2B के अंदर आप प्रॉपर फिल्टर्स लगाकर सर्च भी कर सकते हो इनवॉइस को। और सबसे क्रिटिकल बात क्या है, जो इनका पर्पस था वो ये है, नो क्रेडिट शैल बी अवेल ट्वाइस अंडर एनी सर्कमस्टेंस। अल्टीमेटली है ट्वाइस क्रेडिट आपका ना चला जाए। सर ये है आपका 2B का पूरा कॉन्सेप्ट। लेकिन अब आप ध्यान से फिर से सुनिए, मैंने आपको आज क्या बताया था सर, 1 से 3B भी तो बनेगी आपकी। हाँ जी सर ये सारा का सारा 1 से ऑटो पॉपुलेट होने लग जाएगा। आप देखो सेल का पोर्शन, अभी इनपुट पे था मैं, अब मैं सेल पे आया हूं सर। ये आपका जो टेबल 4A ऑफ GSTR1 या इन सब में गया होगा, यहां पर ऑटो पॉपुलेट होने लग जाएगा सर। यानी कि 1 और 3B बड़ी क्रिटिकल हो गई अब आपके लिए दोनों। सर ये सारी चीजें खुद 1 से उठाएगा एग्जेम्प्ट सेल्स, इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, फिर ये आपकी कहां से उठाएगा सर, 2B से। ये आपका लायबिलिटी में भी ऐड होता है और इनपुट में भी ऐड होता है। सिमिलरली नॉन GST आउटवर्ड सप्लाई ये 1 से ले लेगा। और सर सिर्फ क्या बचेगा, मात्र आपकी चीज क्या बचेगी, ये वाली सर, पेमेंट ऑफ टैक्सेस। यहां पर भी सर, यहां पर भी ध्यान से सुनिए, वो PMT6 को एडजस्ट करने की बात करेगा अगर आप QRMP स्कीम में हुए तो। ठीक है, ऑब्वियसली बात है ना सर, आपने 2 क्वार्टर में एक क्वार्टर में मंथ 1 मंथ 2 में PMT6 में से पे कर दिया होगा चलान, तो उसको भी तो एडजस्ट कराओगे सर यहाँ पे, तो वो भी हमें साथ साथ ही यहीं पे करना होगा सर। ठीक है, मूविंग फर्दर फॉरवर्ड सर, ये कैसे डाउनलोड होता है, ये सारा प्रोसेस मैंने स्लाइड में लगा दिया है। सर ब्लॉक क्रेडिट का तो सर हमें ही करना पड़ेगा ना सब कुछ। सर देखो तभी तो मैंने बोला एक ऑटो पॉपुलेटेड है लेकिन एडिटेबल भी है। एडिटेबल। आप गाड़ी खरीद के आए अशोक सर, आपने वहां GST नंबर दे दिया, अब इसको कैसे पता चलेगा कि ये ब्लॉक्ड है? वो तो 2B में दिखाएगा ही उसको, वो 2B में दिखा देगा। अब आप बात समझिए, मेरा मानना क्या है सर अशोक सर, 2B से ज्यादा क्रेडिट नहीं हो सकता, कम हो सकता है। 2B में वो आपके पीछे पड़ जाएंगे अगर आपने ज्यादा ले लिया। ठीक है, तो ये क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम की हमने डिस्कशन करी सर थोड़ी सी अभी। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे सर, अब आते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऑफ ई इनवॉइसिंग। अभी मेरे पास समय है ना अशोक सर, अजय जी? हाँ है सर अभी, क्योंकि मुझे क्वेरी सेशन भी लेना है सर। यस, पर्पस ऑफ ई इनवॉइस। ई इनवॉइस ध्यान से सुनिए क्या है। ई इनवॉइस अब मेरे लिए कब से एप्लीकेबल हो रहा है सर? 100 करोड़ वाली टर्नओवर के लिए भी मेरे लिए 1 जनवरी 2021 से ये ई इनवॉइस एप्लीकेबल हो रहा है। ये कब पता लगा, किस नोटिफिकेशन से? ये अभी ताजी जो मैंने 81 से 88 नोटिफिकेशन बोली ना, 10 नवंबर से आई है सर, इसके अंदर इसको कवर किया गया है। ठीक है, अब आपकी 100 करोड़ की टर्नओवर भी होगी अगर, तो आपका ई इनवॉइस एप्लीकेबल हो जाएगा। मेरी रिक्वेस्ट ये है, ध्यान से सुनिए मैं आगे क्या लिख रहा हूँ यहाँ। 1 अप्रैल 2021 से ये एवरीवन ऑल के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा सर, इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर। यस सर। तो अशोक जी मैं आपसे बोलूंगा आज नहीं तो कल इसको सीख लें। जैसे ईवे बिल में एक दिन मौका नहीं मिला था ना, अगले दिन से एप्लीकेबल हो ही गया था। इसका आपको मौका नहीं मिलेगा सर। अभी हम ये सोच के चल रहे हैं, मेरे को भी पीछे किसी ने बोला यार ई इनवॉइस का सेशन रखने की सेंस ही क्या है, क्यों? क्योंकि ये तो बड़ी लोगों के लिए है। सर मैं आपको कह रहा हूँ 1 अप्रैल 2021 में प्रोएक्टिव अप्रोच रखिए रेदर देन सर रिएक्टिव अप्रोच। इफ वी बिकम प्रोएक्टिव इन जीएसटी सर, तभी हम सस्टेन कर पाएंगे। अब it is known fact that it will come from 1st April 2021. It will be applicable irrespective of your turnover.
सर हो सकता है 5 करोड़ तक नीचे छोड़ दे, 5 करोड़ से ऊपर तो हो ही जाएगा ये। सर ताजा मजा है। अब आपको धीरे धीरे इसमें लाइफ में जीएसटी में पता चलेगा। ई-वे बिल 50,000 तक छोड़ा था ना उन्होंने सर। एक दिन ये 50,000 की ट्रांजैक्शन पे छोड़ेंगे इसको सर। टेक माय वर्ड्स, आज ये रिकॉर्ड हो रहा है, आपको पता लग जाएगा बाद में। अल्टीमेटली 50,000 पे रुकेगी कहानी सर। Obviously they have to leave something out of the ambit of such a critical इसमें आपकी जो आपकी कंप्लाइंस है ये। चलिए अब आप ध्यान से देखो, 1 अप्रैल 2021 से इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर ये एप्लीकेबल हो जाएगा। सर थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं इसमें होता कैसे है। ये पीछे के टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं। आज भी होता क्या है, आपका नॉर्मल एक ईआरपी होता है सर। आप ध्यान से सुनेंगे, आप कहते हो यार ये सब लोग कैसे करेंगे, कॉस्टली तो नहीं है सर। बिल्कुल कॉस्टली नहीं है। इन्होंने ना एक पोर्टल पे, ये देखो इन्होंने एक पोर्टल बनाया हुआ है सर। अभी हमारा एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर हमारा डिपॉजिटरी है इसके अंदर। अभी गवर्नमेंट ने सिर्फ एक ही अथॉरिटी को अपॉइंट किया है, दैट इज एनआईसी। सर यहां पर आप क्या चेक कर सकते हो, सबसे पहले तो यहां पर आप अपना जीएसटी नंबर डालो, किसी का भी, किसी भी पार्टी का। अब क्यों मैं आपको बोल रहा हूं ऐसे, सर ध्यान से सुनना। अगर आपने इनवॉइस जनरेट कर दिया विदाउट इनवॉइस रेफरेंस नंबर और आपके ऊपर इनवॉइस रेफरेंस नंबर एप्लीकेबल था, तो आपकी 10,000 रुपए की मिनिमम पेनल्टी है। एंड इवन इट कैन बी इक्वल टू द टैक्स अमाउंट इन द इनवॉइस। आपने कहा कि यार सामने वाले पे इनवॉइस रेफरेंस नंबर एप्लीकेबल है और मैंने उससे इनवॉइस लिया, तो क्या मुझे इनपुट मिल जाएगा? और अगर उसने इनवॉइस जनरेट नहीं किया, नहीं मिलेगा सर, क्योंकि वो प्रॉपर टैक्स इनवॉइस ही नहीं माना जाएगा सर। तो सर इसलिए उसने बोला एक पोर्टल बनाया गया और स्टेटस ऑफ ई इनवॉइस अनेबलमेंट, इनेबलमेंट में जाके जीएसटीआईएन चेक करो और चेक करें पहले जीएसटीआईएन के ऊपर ई इनवॉइस एप्लीकेबल है भी या नहीं। अब सर आपने कहा कि यार मेरी ना टर्नओवर 100 करोड़ रुपए है, लेकिन यहां पर मेरा नाम तब भी नहीं दिख रहा, तो पोर्टल पे जाकर एनेबलमेंट कराइए इसको। पोर्टल पे जाकर नॉर्मल प्रोसेस है, आप अपना खुद क्रिएट करके वॉलंटरी में चले जाओगे एक तरह से। आपने कहा नहीं यार मेरी टर्नओवर 50 करोड़ रुपए ही है, तब भी मेरा नाम दिख रहा है, उल्टा केस, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, मत जनरेट करो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है शुभ सर? हाँ जी सर। यहां पर देखो, इनमें एक ऑप्शन होता है जेसॉन अपलोड करने का। जेसॉन अपलोड करने का यानी कि आप चाहो तो आप एक एक्सेल की यूटिलिटी, जैसे ई-वे बिल की यूटिलिटी होती है ना बल्क ई-वे बिल्स जनरेट करने की, वैसे बल्क ई इनवॉइस जनरेट करने का भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है ऑन द पोर्टल। मैं आपसे फिर से बोलूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, अपने अपने क्लाइंट्स की टेस्टिंग करते रहिए, टेस्टिंग करवाते रहिए, नहीं तो सर हमें कंसल्टेंट को समझाना मुश्किल हो जाता है। ये है आपका डैशबोर्ड इसका। अगेन यहां पर आप जाते हैं, अपलोड करते हैं, ई इनवॉइस आपके जनरेट हो जाते हैं और आपका ऐसा ई इनवॉइस दिखने लग जाता है। ठीक है, सिमिलरली प्रोसेस बहुत आसान है। ये मैं आपको ऐप की बात कर रहा था, ये जो क्यूआर कोड बना आता है ई इनवॉइस के ऊपर, आप मोबाइल में कोई भी ये बंदा ऐप डाल के सिर्फ उस क्यूआर कोड को स्कैन करेगा और उसका पूरा इनवॉइस की डिटेल आ जाएगी। अशोक जी समझ रहे हैं? ऑफिसर्स के लिए वेरिफिकेशन करना कितना आसान हो जाएगा। सर आपको एक और चीज बताऊं अशोक सर, दिस ऐप कैन वर्क इन ऑफलाइन ऑल्सो, यानी कि इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी नहीं है। समझ रहे हैं सर? अब कुछ क्वेरीज के साथ साथ एफएक्यू करके हुए इसकी ई इनवॉइस को समझेंगे, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस है। टेक्निकली मैंने पूरा प्रोसेस आपके लिए डाल रखा है कि आपको कैसे इसको लेना है। ठीक है, ये देखिए सर, देखिए सर, will there be a time limit for e-invoice uploading for registration? Yes, उन्होंने रजिस्ट्रेशन ऑफ ई इनवॉइस के लिए आपको बोल दिया है। आज जैसे टेस्ट रन चल रहा है सर, अभी टेस्टिंग चल रही है, उन्होंने आपको बोल रखा है कि आप इवन रजिस्टर्ड हैं तब भी आप टेस्टिंग कर सकते हो। Will it be possible to allow invoices that are registered on invoice registration portal to be downloaded? Yes, you can download it sir anytime. आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, वो क्यूआर कोड से वैसे भी आप स्कैन कर सकते हो उसको।
Will it be possible to print the e-invoice? Yes, sir. It will be possible to print the e-invoices. Next, whether e-invoice generated through GST portal can be partially or fully cancelled. ध्यान से सुनिए. Any cancellation can be happening within 24 hours of IRN. 24 घंटे के बाद क्या होगा? अशोक जी बताओ, अगर आपने एक इनवॉइस रेफरेंस जनरेट कर दिया, विपुल सर आपको क्या लगता है अजय जी, उस केस में क्या होगा रवि सर? और आप कैंसिल करना भूल गए उसको, गलत सर था फिर क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा सर आपको। सर, सब यही कहते हैं क्रेडिट नोट करना होगा। विपुल जी आप भी, अजय सर? हाँ सर। सर ध्यान से सुनो, आज आपको एक चीज बता रहा हूँ सर, IRN तो कॉन्स्टेंटली रियल टाइम बेसिस पे चल रहा है ना। मंथ एंड होने के बाद आपके पास 10 या 11 तारीख या 13 तारीख है ना सर GSTR 1 बनाने के लिए। सर आप इसको 1 में से इनवॉइस को रिमूव कर सकते हो मैनुअली। सर 24 घंटे के बाद IRN नहीं हट सकता ना, लेकिन GSTR 1 तो ठीक हो सकती है अभी भी, क्योंकि GSTR 1 थोड़ा ना फाइल हो गई सर उस पीरियड की। सो बट कल को इसकी रिकंसिलेशन करवा सकती है डिपार्टमेंट। बिल्कुल सर, जैसे ई वे बिल वर्सेस 1 होता है वैसे ही IRN वर्सेस GSTR 1 भी होगा, क्योंकि टेक्निकली नाउ वी आर एंटरिंग इनटू एरा वेयर 1 and 3 वे विल बी टेक्निकली reconciled. Your input is getting reconciled from 2B. So the only way and the scope of gap or deficiency will be there between this IRN versus GSTR 1. या आपको लगा एक IRN जनरेट कर दिया मैंने, वो गलत कर दिया, 10,000 का कर दिया, करना था 1 लाख का, अब 24 घंटे के बाद तो नहीं हो सकता ना चेंज। उस केस में आप फिर उसको 1 में अमेंड करो, एक तरह से 1 में ठीक करो, अमेंड भी नहीं बोलूंगा मैं, फाइल ही नहीं हुई तो पहले टेक्निकली आप चेंज कर दोगे उसके अंदर। हाउ वुड अमेंडमेंट्स बी अलाउड इन इनवॉइस? अगेन मैंने बोला अमेंडमेंट जैसे जीएसटी पोर्टल अलाउ करता है लॉ, हमें वैसे ही करना होगा। अगर विद इन अ मंथ है तो 1 के अंदर कर देना, बाहर हो गया तो अमेंडमेंट पास करनी पड़ेगी। With introduction of e-invoices, what are the documents that need to be carried during the transit of goods? E-way bill will continue to be mandatory. However, I am intention sooner or later government will go away with e-way bill, क्योंकि उसका पर्पस खत्म हो जाएगा। सर एक अशोक जी मुझे बात बताना सर, ई-वे किस चीज को गवर्नमेंट ने और पकड़ लिया? एक तो हमने ये पकड़ लिया रियल टाइम बेसिस पे इनवॉइस को, और क्या पकड़ा सर? सर जहाँ पे मैं ये बोलता था कि मूवमेंट ऑफ गुड्स हो ही नहीं रही, वहाँ पे ई-वे बिल एप्लीकेबल था ही नहीं, बट वहाँ पे IRN एप्लीकेबल है। यस, और साथ ही साथ इन्होंने सर्विस सेक्टर को भी कवर कर दिया। सर सर्विस सेक्टर को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है सर आज की डेट में। होटल इंडस्ट्री की बात करिए, IT सेक्टर की बात करिए, दे ऑलवेज नेवर डेल्ट अबाउट एनीथिंग कि उनको हाथ के हाथ रिपोर्ट करना है। आज उनको रियल टाइम बेसिस पे रिपोर्ट करना पड़ रहा है ड्यू टू e-invoices. So technically we all have to get the habit of e-invoice sooner or later sir. As a chartered accountant बोल रहा हूँ सर आपको, 1 अप्रैल 2021 के बाद जब आपको अपनी फर्म का इनवॉइस रेस करना है तो IRN डालना है सर। अभी तक आप कहते थे मेरे पे ई-वे बिल एप्लीकेबल नहीं है नव्या, मेरे को तो सिर्फ GSTR 1 का पता है। अब आप कहोगे पहली बात मैं IFF में जाऊं या ना जाऊं, QRMP में जाऊं ना जाऊं, भगवान करे आपकी टर्नओवर इतनी ज्यादा हो कि आपकी सारी चीजें मंथली हो, बट सर IRN तो आपके लिए पक्का से मैंडेटरी है, ठीक है। अब आप ये चीज अप्लाई करके, तभी कह रहा हूं किसी और पे टेस्ट कर लो, नहीं तो खुद पे टेस्टिंग चलेगी सर 1 अप्रैल के बाद, ठीक है। क्या एक्सपोर्ट्स के लिए ई-इनवॉइस चाहिए आपको कंप्लायंसेस? यस आपको चाहिए, ठीक है। डज द ई-इनवॉइस अलाउ द डिक्लेरेशन ऑफ एक्सपोर्ट इनवॉइस या जीरो रेट? यस, वहां लिखा आता है कि ये जीरो रेटेड सप्लाईज हैं, आप उसको क्लिक कर सकते हो, उस ई-इनवॉइस से पता लग जाता है दीज आर एक्सपोर्ट, ठीक है। विल द इंडस्ट्री भी प्रोवाइड सफिशिएंट टाइम? हाँ सफिशिएंट टाइम है, और 1 जनवरी 2020 से वैसे ही वॉलंटरी बेसिस पे चल रहा है, और टर्नओवर का ब्रेकअप उन्होंने कर ही दिया था, पहले 500 करोड़ पे किया, फिर अब 100 करोड़ पे, और फिर 100 करोड़ से सब पे धीरे धीरे अप्लाई कर ही देंगे, ठीक है। Will businesses now be required to generate e-invoice on GST portal or e-invoice on the e-invoice portal or the IRN portal? सर ध्यान से सुनिए, businesses will continue to generate e-invoices on their internal. आप अपना इनवॉइस तो खुद ही बना रहे हैं, सिर्फ वहां पर जाके क्या बना रहे हैं? IRN नंबर, इनवॉइस रेफरेंस नंबर,
सर आपको एक बात बताऊं अच्छी सी, अशोक सर, हाँ जी, IRN नंबर उनके पास परमानेंट सेव रहेगा आपका. They will keep the backup data from there with the use of departmental audit, special audit, any investigations. और जैसे कि विपुल जी ने कहा कि क्या रिकंसिलेशंस में यूज होगा, हाँ सर मेरा मानना है होगा. ठीक है, ध्यान से देखिए सर. नॉर्मली would be available, how long will be the e-invoice available at the government portal? Sir, it will be kept there for 24 hours, but उनके invoice reference number में background में सारा डेटा रहेगा. ठीक है, अब ये ANX 1 वाला कॉन्सेप्ट हट चुका है. अब कौन सी नई सिस्टम आ रहा है? 2B 2A 2B वाला. ठीक है, will a business generate invoice at the same time? How will the server react? सर अभी उन्होंने मान के चल रहे हैं कि हमारा पोर्टल, जैसे सर आप लोगों को सबसे अच्छी सी खासियत पता ही है जीएसटी पोर्टल की, 1.5 लाख लोग केटर कर सकते हैं वो अभी भी. तो क्या इनवॉइस रेफरेंस नंबर पोर्टल का भी ऐसा ना हो जाए काम कि 1.5 लाख लोग ही जनरेट कर पाए? पता लगे जब दिवाली का सीजन आए तो बिग बाजार पे 4 लोग यहाँ पे काउंटर पे खड़े ही रह गए और पीछे लाइनों की लाइनें लग गई. क्यों? क्योंकि IRN पोर्टल नहीं चल रहा. Can be possible, Ashok sir. We can see such time if there is a downtime at IRN portal. However, they may assign the licenses like to NIC, National Informatics Center को दिया, वैसे ही वो और लोगों को भी देंगे. ठीक है, मैक्सिमम नंबर लाइन आइटम 100 होती हैं इसमें सर. आप 100 से ज्यादा इनवॉइस नंबर नहीं लिख सकते, अगला इनवॉइस करना पड़ता है. दीज आर लिमिटेशंस. नॉर्मल सर, बाकी सारी क्वेरीज आसान है. बाकी ये रिफंड्स के रिलेटेड हैं. सर ये ई इनवॉइस B2B B2C दोनों के लिए है? यस सर. सर ये बिल्कुल B2C B2B दोनों के लिए एप्लीकेबल है. क्या अशोक जी? थैंक यू क्वेरीज की तरफ जा सकते हैं अजय जी. सर क्वेरीज. सर क्वेरीज बिल्कुल जी. थोड़ी सी हैं, ज़्यादा नहीं है. एक है, आई एम अ क्वार्टरली फाइलर, कैन इन दिसंबर आई ऑप्ट फॉर मंथली फॉर GSTR1 एंड कंटिन्यू क्वार्टरली फॉर 3B. मतलब बेसिकली मुझे GSTR1 मंथली करके क्वार्टरली 3B कर सकते हैं. बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. Then second है, how to avail ITC of not allowed. क्या सर? How to avail ITC of not allowed. I guess वो पूछना चाह रहे हैं 2B अच्छा, में लिखा आ रहा होगा not 2B allowed. में नॉट अलाउड चला गया तो सर 2B में नॉट अलाउड क्यों जा रहा है सर? वो 16(4) की वजह से जा रहा है. वो या तो 16(4) की वजह से जा रहा है जो आपको टेक्निकली अलाउड भी नहीं है भैया. ठीक है, या वो प्लेस ऑफ सप्लाई गलत है, उसने डाला है. तो एक्चुअली में सर वो नॉट अलाउड वाला आप अवेल नहीं कर पाओगे. मैं टेक्निकली आपको बताऊं, उसको आपको सामने वाले से अमेंड कराना पड़ेगा, या तो अगर उसने गलत अपलोड किया. राइट. ठीक है. The next question है, सर अगर प्रीवियस क्वार्टर में कैश में पे हुआ ही नहीं है तो 35% किसका लगेगा? PMT जीरो सर. अब आप सुनो, उसमें जीरो है. इवन इफ यू हैव अ निल, मैं वो शायद मिस कर गया पॉइंट, कि अगर आपका निल टैक्स लायबिलिटी है उस पीरियड की, तो भी चाहे पिछले में 35% हो, इस बार नहीं करनी होगी. Will PMT 06 be editable? PMT6, यस. PMT6 अगर आप ऑटो उस पे जाएंगे फिक्स सम पे, तो मेरे हिसाब से वो नहीं होना चाहिए एडिटेबल, क्योंकि वो 35% ऑफ प्रीवियस खुद उसको पिक करना चाहिए. बट वी आर येट टू सी कि वो खुद पिक करेगा या नहीं. हाउएवर एडिटेबल बचना चाहिए वो तब भी, क्योंकि अगर आप फिक्स सम में गए या ऑटो वाले में गए या सेल्फ असेसमेंट वाले में भी गए, तो फिगर एक खुद लिखी आ जाएगी, बट आप उसको एडिट तो कर सकोगे मेरे हिसाब से. राइट. सर एडिट इसलिए भी जरूरी होगा कि अगर हम कम टैक्स पे करना चाहते हैं तो इंटरेस्ट ही तो लेगी ना डिपार्टमेंट हमसे. यस, और ऐसा भी हो सकता है. होना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल होगा सर एडिटेबल. इट्स लाइक अ चालान, आई बिलीव. सो नेक्स्ट है, सर रूल 36(4) फॉलो करना पड़ेगा अगर एक्चुअल मेथड यूज करते हैं तो? क्वेश्चन है सर उसमें ये है कि अगर आप 10% 20% वाली स्कीम में जाना चाहते हो, जो 20 से 10 हो चुकी है, 36(4) अभी तो एप्लीकेबल है और आप हाँ 10% ले पाओगे. बट यस, गवर्नमेंट विल डू अवे विद 36(4) वेरी सून सर. जैसे ये स्कीम प्रॉपरली चल जाएगी, वो 36(4) को रिमूव कर देंगे सर. अभी कर सकते हो सर, बिल्कुल. एज ऑफ नाउ यू कैन डू इट. Then is PMT6 challan that we are used to deposit the GST challan now?
सिमिलर नहीं सर, वो चालान एक अलग है। ये सिर्फ मंथ 1 मंथ 2 के लिए 25th की डेट के लिए अलग स्पेशल चालान है आपके लिए। बट मोर और लेस प्रोबेबली वैसे ही होना चाहिए जैसा हाँ अभी वैसे ही है भैया, मतलब फंडामेंटल सेम है बट इट इज अ डेडिकेटेड चालान फॉर दिस। Then tax paid excess under one act, how can that be adjusted against other act? मतलब आपने सीजीएसटी में ज्यादा पे कर दिया, एसजीएसटी में कम पे करना था, ऐसे कुछ ये कहना चाह रहे हैं? हाँ शायद ये 10,000 रुपए शायद सीजीएसटी में ज्यादा जमा कर दिया, ऐसा वैसे टेक्निकली 3B में आप पॉसिबल नहीं। जितनी लाइबिलिटी आप निकालते हो उतनी ही एसजीएसटी की निकलती है। हाँ ये शुरू में हो जाता था, उस केस में हम ये कहते हैं कि फिर इनपुट रिवर्सल करके दिखाओ उसमें, या सॉरी इनपुट दिखाओ और उतना ही इनपुट में फिर रिवर्सल दिखा दो। वो टेक्निकली क्या हुआ कि वहां पर ऐसा कोई फिल्टर नहीं है। नहीं, इनपुट रिवर्सल में भी तो वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, जितना सीजीएसटी में होगा उतना ही एसजीएसटी। हाँ लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर आपसे टेक्निकली जैसे शुरू में लेट्स से पर हो भी गया आपसे, तो 10,000 का सीजीएसटी ज्यादा पे दिख रहा है, ठीक है, फिर मैं क्या करता हूँ सर, 10,000 रुपए का सीजीएसटी का इनपुट बढ़ाता हूँ, दिस इज रॉन्ग, और 10,000 का ही आईटीसी रिवर्स भी कर देता हूँ हाथ के हाथ उसी में, तो फंडामेंटली वो जीरो हो जाता है एक तरह से। ओके, सो टेक्निकली अब ऐसा होता ही नहीं है बिल्कुल भी, अब ऐसा हो ही नहीं पाता, तो इतनी टेंशन आती नहीं है इस चीज की। राइट। Then not allowed as per 2B for filing after due date of GSTR1. Can we claim that 1 and 3B in next month? Yes, you can. बिल्कुल, वो अगले में ही दिखेगा आपको। Right. What if GSTR1 is filed late and in 2B it is shown after 13? Then in which month? वो next month आपको नेक्स्ट मंथ सब्सिक्वेंटली मिल जाएगा बिल्कुल। Then अभी क्लैरिटी के लिए फिर से आया, टैक्स पेड इन PMT 06 CGST SGST एक्सेस लाइबिलिटी अंडर IGST। जो वो अभी बात कर रहे थे कि एक्सेस एक में ज्यादा हो गया, वो कह रहे हैं IGST की लाइबिलिटी थी बट CGST SGST में पे हो गया। ओके, तो IGST की लाइबिलिटी CNS में डिपॉजिट हो गई। इस केस में आपके पास दो चीजें होती हैं, आप नेक्स्ट वाले में जाकर CNS को कम करो और IGST डिपॉजिट कर दो उतना, ये भी कर सकता हूं मैं। आइदर व्हाट यू कैन आल्सो डू इज कि आप IGST आज जमा करो और CGST SGST का रिफंड क्लेम करो। द सेक्शन रेफरेंस है सेक्शन 77। बट PMT 9 के थ्रू नहीं हो सकता सर? नहीं रवि सर, यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने कहा एक्सेस लायबिलिटी डिपॉजिट हो गई है, वो होता है कैश लेजर में पड़ा हुआ है। हाँ। समझना सर, यहाँ पर वो मेरे को कहना चाह रहे हैं वो ऑफसेट भी हो गया। ऑफसेट भी हो, हाँ, वो जो आप कह रहे हो वो PMT 9 में हो जाएगा सर। इस केस में लेकिन ऐसा रहेगा, अगर मेरे से गलत डिपॉजिट हो भी गया और आने वाले टाइम में गलत डिपॉजिट के बेसिस पे ही एड हॉक लायबिलिटी तय होगी। हाँ सर, वो ठीक नहीं हो पाएगा, वो चेंज नहीं हो पाएगा। उस केस में फिर मैं फिक्स सम मेथड से ना जाके एक्चुअल वाले पे चला जाऊंगा। राइट। सो दीस वर द क्वेरी सर। आई बिलीव मैं बिफोर आई कुड हैंड ओवर, मैं अजय जी, विपुल जी, रवि जी, अशोक सर, सबको ये कहना चाहूंगा, आज मैं प्रेजेंस और अपना सेशन और अपना टाइम और आप सबका कीमती समय जस्टिफाई कर पाया। और सिंसियरली मैं ये जानता हूं कि अभी इन चीजों पे और बहुत सारे सेशंस लगाने पड़ेंगे। दिस वाज अ क्विक session for everyone to understand actually what is coming new in the GST law. So I hope handfoldedly I tried my best and will be trying my best. Thank you sir. Thank you नव्या जी, मतलब मजा आ गया। अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो आपको आज सुन के मजा आ गया। Definitely we have gained a lot. It is a wonderful presentation and it's a very clear presentation. और हर बार की तरह पिछली बार भी जब आप आए थे तो आपने काफी डिटेल में समझाया था और इस बार भी आपने काफी अच्छा हमें समझाया है and we have gained a lot. Over to Vipul ji for formal vote of thanks. Thank you अजय जी। Of late अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि changes in GST have become synonyms now. So with so much out there to learn and unlearn, having a seminar on this topic was desired by each and every one of us. And CA Navya Malhotra was exceptional in explaining each and every change in very detailed manner. And the manner in which you explained, sir, that is truly remarkable. And it is admired by each and every one of us. Thank you so much, sir. On behalf of all the members of Rohini CPE Study Circle, I would like to express our heartfelt thanks to you. Thanks a lot. And also I'd like to thank CA Ashok Jain ji for his deliberations on latest development, which are basically the changes from our previous seminar to this seminar. Sir, thanks a lot for putting in such hard work. Thank you so much. Thank you. With this, we'll like to close the session for today. Be safe. Have a wonderful evening. God bless. Thank you. Thanks to all of you. Sayonara.